मेक इन ओडिशा कनक्लेव द्वितीय दिन आज 2022 वर्षर शिल्पनीति घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री। मेगा व्यवसाय सम्मेलन में 20 रु अधिक एमओयू स्वाक्षरित होगा संभावना। पद्मपुर चली घमासान प्रचार लगातार तृतीय दिन में बीजेपी माराथन प्रचार करेंगे धर्मेन्द्र। सेपटे वर्षा राणी घर को घर बुली भोट मागुंट बीजेडी हेवी वेट। कांग्रेस प्रार्थी सत्यभूषण साहू भी चलाई माराथन कैंपेन। आज ई मुद्रार खाउटी व्यवहार भुवनेश्वर समेत देशर 4 प्रमुख सहर में व्यवहारिक प्रचलन। सेवा जोगाइबे 8 बैंक। टंका कॉइन मूल्य भली जारी हेब ई मुद्रा। वालेट करिहेब कारोबार। यूक्रेन विरोध में युद्ध को जोरदार करिबो रूसिया। प्रतिरक्षा मंत्री को युद्ध रे नेक्स्ट जनरेशन वेपन व्यवहार पर पुतिन को निर्देश। अमोघ अस्त्र व्यवहार पर पुतिन को निर्देश को नहीं बढ़ाइला चिंता। नमस्कार बुलेटिन को स्वागत। प्रथम चलतु नजर पकाइबा मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे जोटी आज द्वितीय दिन एवं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थित थिबा बेले वर्तमान मुख्य शासन सचिव संबोधन करूछंती। हम आपन को नि जाउछु सेठाको। The conclave will also host 5 thematic sessions on Startup Odisha, Skilled in Odisha, Women SSGs, Transformation of School Education in Odisha, and opportunities in metal downstream sector in Odisha. From tomorrow, we shall be having 20 sectoral sessions spread over the next 2 days. From mining, metallurgy to chemicals, petrochemicals and plastics to textiles and apparel and tourism, these sectoral sessions will give a glimpse of the various opportunities Odisha offers in the respective sectors. In the evenings, we'll be having cultural events which will provide all of you with a great atmosphere to enjoy. Yesterday, Honorable Chief Minister also inaugurated the Make in Odisha Expo, which has seen an unprecedented response this time from the exhibitors. I would urge all the dignitaries present here to kindly visit the MIO Expo halls and see the wide range of display. The idea behind this biennial flagship summit is to showcase the vast existing and emerging opportunities in the state and to present an attractive proposition to the investor community. We have the vision to become the investment destination of choice in the country as well as globally. We have a highly progressive industrial policy and have developed state-of-the-art infrastructure. The state has also put in place a user-friendly single-window system that ensures hassle-free and prompt online approvals for the projects. This system and many such initiatives are helping Odisha become the most preferred destination of projects in India. The Make in Odisha Conclave 2022 is a platform that brings all the stakeholders together. Odisha government understands that in order to attract investors, we need to build a conducive business ecosystem. We have brought in progressive policies, quality infrastructure, dedicated parks, plug and play facilities, etc. We have also laid special emphasis on skilling. Today, Skilled in Odisha has become a brand. Through the Make in Odisha Conclave 2022, we want to build new relationships and strengthen our old relationships with
all of you. We want you all to be a partner in Odisha's growth story. Once again, I would like to extend... अन्य खबर को लेडी ब्लैकमेलर अर्चना नाग गिरफ मामला आज ईडी रे हाजर होइचंती होटल व्यवसायी शिव प्रसाद दास। व्यवसायी शिव प्रसाद को हाजर हेबा पई समन करिथिला ईडी। आर्थिक कारोबार नै शिव प्रसाद को पचरा उचरा करूछि ईडी। अर्चना और शिव दास को मध्य टंका कारोबार होइतिबा नै सूचना मिलिछि। होटल व्यवसायी शिव प्रसाद 2019 रे होटल चलाउथिले। होटल ताज ओडिशा को एबे से लीज रे दैछंती। 2019 रु अर्चना को संपर्क रे थिले। अर्चना श्रद्धांजलि शिव प्रसाद को होटल रे बहु समय बिताइछंती। एही होटल रे हनी ट्रैप रो डील हेउतला बोली संदेह करा जाउछि। आ ए हेउछि डील बेले रो वीडियो। अर्चना किभली डील करंती ता वीडियो रु स्पष्ट बारी हेउछि। अर्चना और श्रद्धांजलि होटल रु नियमित जाउथिले। सेबडा अर्चना को स्वामी जगबंधु को जामीन एडीजे कोर्ट रे खारज होइतिबा बेले आज खोर्धा सेशन कोर्ट रे जामीन आवेदन करिसंती अर्चना। दीपक सामल अधिक आलोचना करने आम सहित अच्छा। दीपक शिव प्रसाद ईडी रे अच्छी अंपटे जो होटेल व्यवसायी बोली कहूचे शिव प्रसाद से होटेल को अनेक थर जाइए श्रद्धांजलि और अर्चना एक सूचना मिली अधिक कौन सूचना? निहाती भाव में शिवप्रसाद दास जे कि जड़े होटेल व्यवसायी जड़े होटेल मालिक से ईडी रे हाजर होती एवं हाजर पाई पूर्व ईडी पक्षर नोटिस होता विशेषकर जहाँ सूचना रही अर्चना एवं से अर्चना से होटेल को बारंबार जाती अर्चना श्रद्धांजलि विशेषकर से होटेल रे डील करती एवं जिते बड़े अर्चना अकाउंट गुड़िक छानबीन करागला से स्पष्ट है जे होटेल जो रही ताज होटेल रही मास्टरकांड निकट में से होटेल रे विशेषकर बारंबार अर्चना जाऊे और टंका कारोबार करुले विशेषकर से होटेल डील कर खबर पाई ईडी तेणु एवं जिते अर्चना द्वारा टंका ट्रांजाक्शन होता परवर्ती मुहूर्त में शिवप्रसाद दास को ईडी रे हाजर पाई नोटिस होती शिवप्रसाद दास हाजर पर विशेषकर अर्चना अकाउंट रु जो टंका ट्रांजाक्शन होती अर्चना अकाउंट रु शिवप्रसाद दास को अकाउंट को जो टंका लेन देन होती से टंका पछर मुख्य कारण कौन थिला ताकू नहीं कोठी ना कोठी एबे ईडी खोलतार करछि। यार मध्ये सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा हला जे 2019 मसिया रु अर्चना एवं शिवप्रसाद दास को मध्य संपर्क स्थापन होइतिला ता परवर्ती मुहूर्त रे तांको होटेल को अर्चना श्रद्धांजलि बारंबार जाउथिले से होटेल मध्य डील होथवार वीडियो मध्य सामना को आसीतिला। तेणु जो होटेल रे वीडियो डील होतिला किबा जो होटेल रे बड़ बड़ डील होतिला से होटेल को नहीं कोठी ना कोठी अनेक किछि प्रश्न एबे सामना को आसी विशेष करी से होटेल रे डील समय आउ केउ माने थिले। द्वितीय कथा होची जो टंका ट्रांजाक्शन होची टंका ट्रांजाक्शन पछर मूल कारण कोन थिला काहेकि शिव प्रसाद दास को अर्चना टंका देथिले ताकू नहीं कोठी ना कोठी ईडी अधिकारी माने एबे खोलतार आरंभ करछंती खोलताड़ आरंभ करपटे जदि देखा जो भाव में जगबंधुकर जामीन खारज हो जाए दीपक तापर पर से सेशन कोर्ट को जाइछंती से नहीं कौन सूचना रहुची? निहाती भाव में गतकाली अर्चनांकर जदि कहबा जामीन आवेदन खारज पर आज से ऊपर कोर्ट आवेदन करिसंती एडीजे टो कोर्ट से अर्थात सेशन कोर्ट से आवेदन करछंती। तेणु सेशन कोर्ट रे से जामीन आवेदन करिया पर स्पष्ट हबो ता परवर्ती मुहूर्त रे तार शुणाणी हबो शुणाणी रे स्पष्ट हबो ताको जामीन मिलिबो कि नाही। अन्यपटे जगबंधु अर्थात अर्चना का स्वामी तांकर मध्य जामीन आवेदन खारज हो सारिछि। तेणु कथा होची कोठी ना कोठी अर्चना आशा रखछंती जे बारंबार से जामीन आवेदन करछंती ताको किभली जामीन मिलिबो किंतु अन्यपटे तांको विरुद्ध में जो सब प्रमाण रही पुलिस पाखरे कि ईडी पाखरे ताकू भित्ति करी कोठी ना कोठी ईडी चैलेंज दौरान कि जामीन आवेदन खारज हम। कथा होची आपण देखिथिबे गतकाली मध्य जे नयापल्ली थाना रे जो फिल्म प्रोड्यूसर अक्षय परिजा 3 कोटी टंकार मामला करथिले से मामला को भित्ति करी अर्चनांकर जामीन आवेदन शुणाणी थिला। परवर्ती मुहूर्त रे एडीजे परवर्ती मुहूर्त रे से कोर्ट ताको जामीन को खारज करथिले। तेणु आज से सेशन कोर्ट रे जामीन पाई आवेदन करछंती। परवर्ती मुहूर्त रे तो ता शुणाणी हबो जामीन मिलिबो कि नाही ता मध्य स्पष्ट होई परिबो। धन्यवाद दीपक। बर्तमान सूचना पाई गोटे पटे शिव प्रसाद ईडी रे हाजर होइछन्ती। शिव प्रसाद होटेल व्यवसायी एवं 2019 रे से होटेल चलाउथिले जो ताज होटेल वीडियो आमे आपन को भी देखाउछु जेउतरे अर्चना एवं श्रद्धांजलि बसी ड्रिंक करंती प्राय बहुत समय कटांती एवं से नै टंका कारबार नै बर्तमान खोलतार चालीछि ईडी तरफ रु शिव प्रसाद को पचरा उचरा करा जाउछि। गुजरात विधानसभा निर्वाचन खबर को 182 आसन मध्य 89 आसन पर प्रथम पर्यायर आज मतदान जारी रही। सकाळू
एथिपाई 25,430 बूथ करा जायछि। सकाळ 9टा सुधा 4.2% मतदान रेकर्ड होईछि। कच्छ, सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात 19 जिल्ला रे 89 आसन रे भोट चलीछि। सकाळ 8टा रु भोट ग्रहण आरंभ होइतिबा बेले संध्या 5टा जाय चलिबो। 2,39,76,670 जन भोटर 788 जनकर भाग्य निर्धारण करबा को जाउछंती। पुरुष संख्या 1,24,33,362, महिला भोटर संख्या 1,15,42,811। निर्वाचन को स्वच्छ और निरपेक्ष करबा पई 19 जिल्लार 13,075 बूथ रे लाइव वेबकास्टिंग रो व्यवस्था करा जायछि। उभय बीजेपी और कांग्रेस प्रथम पर्यायर समस्त 89 आसन रे प्रार्थी दैछंती। अरविंद केजरीवाल को आप 88 आसन रे निर्वाचन लढुछि। बीजेपी, कांग्रेस और आप व्यतीत बीएसपी, सपा, सीबीएम, बीटीपी भली अन्य 36 राजनीतिक दल भी प्रथम पर्याय निर्वाचन रे प्रार्थी दैछंती। प्रथम पर्याय रे बीजेपी 89 आसन रु 48 रे एवं कांग्रेस 40 आसन रे व्यवस्था मध्य करिसेंती निर्वाचन कमिशन। गोटिए आसन पई स्वाधीन प्रार्थी मध्य जीतिथिले। बैलेट पेपर रे बूथ पे भी व्यवस्था करा जायछि। स्वतंत्र व्यवस्था संवेदनशील अति संवेदनशील एथिपाई मध्य को ध्यान दैछंती। महिला भोटर को पाई पिंक बूथ रे व्यवस्था करा जायछि। नहीं, अच्छा लग रहा है। आज सबसे पहले दिया हर बार लास्ट होती है। Celebrating the voting day. We are celebrating the voting day for the development of the country. So what message you want to give the society? Yeah, everybody should voting as early as possible for the development of the India. मैं लोगों को अपील करता हूं कि अवश्य मतदान कीजिए। लोकतंत्र में मतदान बहुत बड़ा दान होता है और इस पर्व को आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी मतदान करना आवश्यक है। अवश्य मतदान कीजिए, भारे मतदान कीजिए और मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, आज हमारा जो लोकशाही का एक बड़ा पर्व है, इसीलिए हमें बहुत उत्साह है कि भाई हमारा जो मत का जो अधिकार है वो उपयोग करके एक अच्छे उम्मीदवार को चुन के लाए। इसीलिए हम जल्दी आए कि हमारा वोट कहीं बिगड़ न जाए। That is very important for everybody because we select our government, so we should plan it properly and select our proper that candidate. It's very important and everybody should give vote on vote. चाष प्रसंगर एंतुड़ीशाला पद्मफूल चाषी बासी के जदि भल करी कला बोले ताहाको आमे देखमु। प्यान नहीं हबार कि किछु नहीं बोर फोर किछु नहीं हबार हमर बुढ़ाकार रे अंदा किजे हमको अंदा सहयोग नहीं पाबा। तो पब्लिक सभा किछु करना है आ चाषी सभा किछु करना है। तो आमे किछु विकास जनते पई नहीं आगे। एई थोड़ा जहा को वोट देबे भाबुचंती से विकास करिवे बोले आशाटे करूनु त सर। एई आशा केते वर्ष रु अछि? बहुत हेलानी सर। ए जाय पदमपुर एरिया रो लोक दादन खोटी जाउछंती आज जाय। शिक्षा जलसेचन गमनागमन जो उन्नति कर पारबा से बढ़िया लोक हमको दरकार आज्ञा, जो माने पब्लिक रो जो माने साधारण जनतार दुख बुझी पारिबे। पद्मपुर रे शंख बाजिबो ना पद्म फुटिबो ना हाते रबो हात। ग्राउंड जीरो आमे नेबो जनतांक भोट। वॉइस ऑफ पद्मपुर अपराह्न 3:30। News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed. शिक्षकों आंदोलन स्थगित। आंदोलन ओहरिला प्राथमिक शिक्षक संघ। हेले एथिपाई राज्य सरकार को डिसेम्बर 20 तारिख पर्यंत महलत देछि संघ। 3 दफा दाबी पूरण नहले पुणी डिसेम्बर 21 तारिख जोरदार आंदोलन करा जिवो बोली कहिछि शिक्षक संघ। 3 दफा दाबी नहीं
गत रविवार विधानसभा आगरे हजार हजार शिक्षक आंदोलन चलाइथिले। आंदोलनकारी शिक्षकों सह राज्य सरकार तीनोटी बैठक फेल मारिथिला। दाबी पूरण पाई महलत मागिथिले सरकार। आउ शिक्षक संघ सरकार को महलत देबा सह आंदोलन को स्थगित रखिछि। जिद्रे अटल आईनजीवी मानिलेनी सर्वोच्च अदालत निर्देश। हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी संबलपुर में जोरदार आंदोलन करछन्ती वकील। आंदोलन बेले पुलिस और वकीलों मध्य होईछि प्रबल धस्त। ब्रेक स्वागत। प्रथम थर पर यूक्रेन आक्रमणर वीडियो जारी कला रूसिया। रूसिया सीमार जलीगला तैल टैंकर। बुधवार बेलारूस और यूक्रेन सीमा को लगिथिबा अंचल में रूसियार एक तैल टैंकर निया लगी पड़ जाइछि। सीमा को लगिथिबा यूक्रेन अंचल में प्रथमे गुड़ीगोला वर्षण करिथिला रूसिया, जार दिनक पर आसिछि एभଳି दृश्य। ब्यानक अंचलर राज्यपाल अलेक्जेंडर बोगमाज सोशल मीडिया रे एक चिठी लिखि उल्लेख करिसेंति पेट्रोलियम टैंकर निया लागिछि। बेलारूस दक्षिण में 10 किलोमीटर दूर, यूक्रेन चेर्निव 40 किलोमीटर दूर में स्थानटी अवस्थित। तेबे এই पेट्रोलियम टैंकर केमिति निया लागिला ता पछरे कहार हाथ जणा पड़ी नाही। तेबे रूसिया ए वीडियो जारी करी आक्रमण पछरे यूक्रेन थिबा इशारा करिछि। रूसिया यूक्रेन युद्ध को नहीं आसुछि बड़ खबर। खूब शीघ्र युद्ध में रूसिया व्यवहार करिबो नेक्स्ट जनरेशन वेपन। प्रतिरक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को निर्देश आसी सारिलानी पुतिन को ठारो। रूसिया चलाइथिबा ए युद्ध में अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र गुड़िक व्यवहार करने को प्रतिरक्षा मंत्री को निर्देश देइछन्ति पुतिन। एवं ए रूसिया प्रतिरक्षा मंत्री एक बोर्ड बैठक में सूचना भी देलेनी। सबुठ बड़ कथा केउ अस्त्र व्यवहार संपर्क में पुतिन ताको निर्देश देले से नहीं से खुलासा करि नाहंती। अनुमान करा जाउछि रूसिया एकर युद्ध परिचालन रे रणनीतिक परिवर्तन आनी पारे। 9 मास धरी युद्ध चली एवं या भितर रूसिया सैन्य को पछकु घुंचिबाकू पड़ुछि। एभଳି अवस्था रूसिया दीर्घ लक्ष्यभेदी अस्त्रशस्त्र ड्रोन और मिसाइल निरोधी सिस्टम अधिक व्यवहार करि पारे। रूसिया प्रतिरक्षा मंत्री को कहबा कथा ए युद्ध में मिसाइल और आर्टिलरी बड़ भूमिका ग्रहण करिसेंति। या सहित आगामी 2023 सुधा रूसिया परमाणु अस्त्र भित्तिभूमि तैयारी करबाकू प्रस्तुत हेउछि। रूसिया और बेलारूस 100 रु अधिक तालीम शिविर 3 लाख स्वेच्छासेवी उत्तीर्ण हो सारे। ए समस्त रूसिया युद्ध मैदान को ओह्लाई पारे। सर्गेई कहते बर्तमान युद्ध जमी चली 2023 बेलू रूसियार प्रतिरक्षा बजेट 150 गुण बढ़ी जाइथिबो। ए सबु को नजर रखी रूसिया किपरि अमोघ अस्त्र गुड़ी यूक्रेन विरोध में व्यवहार करिबो से नहीं चिंता करुछि। पूर्व रूसिया परमाणु अस्त्र आक्रमणर भय देखाउतिला। यार भितर पुतिन को ए नेक्स्ट जनरेशन अस्त्रशस्त्र पुणी नुआ चर्चा आरंभ कलानी। प्रकृत में केउ अमोघ अस्त्र कथा पुतिन कहउछन्ति ताहा स्पष्ट न हेबा पुतिन को गुप्त रणनीति आड़क इशारा करुछि। या भितर यूक्रेन को बड़ धरणर सहायता देव अमेरिका। रूसिया आक्रमण में छारखार की हुआ अमेरिका देव 53 मिलियन अमेरिकीय डॉलर। एने सूचना देइछन्ति अमेरिका वैदेशिक सचिव एंटोनी ब्लिंकेन। रूसिया आक्रमण में कीव ध्वस्त विध्वस्त एवं बिजुली ग्रिड मरामती एक बड़ धरणर अर्थ विनियोग हेब। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ବିଜୁଳି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, सर्किट डिस्कनेक्टर, गाड़ी तथा अन्य बिजुली संपर्कित सामग्री रही। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी सूचना अनुसार बिडेन प्रशासन 1.1 बिलियन डॉलर खर्च केवल यूक्रेन और मालडोभारे करने को बजेट प्रस्तुत करिछि अमेरिका। आज भी पद्मपुर घमासान प्रचार चली। लगातार तृतीय दिन में कैंपेन करेंगे धर्मेंद्र। आज 11टा बेले झाड़बंदर फुटबॉल खेल पड़िया साधारण सभा जोग देउछन्ति केन्द्रमंत्री और 11:30 पद्मपुर दुबला बाहाल पड़िया साधारण सभा सामिल हुई दलीय प्रार्थी प्रचार करेंगे। सेबड़े 2 दिन है नवीन को टार्गेट कर आसुछन्ति धर्मेंद्र प्रधान। आ जिला मान्यता प्रसंग उठाई चाषी ऋण दादन समस्या को नहीं समालोचना करिसेंति। पद्मपुर उपनिर्वाचन पर भोट ग्रहण तारीख जेते पाखाउछि निर्वाचनी उष्मता सेते वृद्धि पाउछि। पद्मपुर अंचल रे माळमाळ नेतांक भिड़ सबु दल तरफरो जेमिति भोटर मान को निज आड़ को आकर्षित करि पारिबे सेथि पई व्यवस्था चली। केन्द्रमंत्री माने विभिन्न
स्थान रे करुछंती गस्त करुछंती एवं भोटर को मनैबा पई चेष्टा करा जाउछि तथा राज्यर मंत्रिमंडल रो बहु सदस्य तथा वरिष्ठ विधायक माने मध्य लागिछंती कांग्रेस दल तरफ मध्य प्रचार जोरसोर करा जाइछि आम सहित अछंती प्रसन्न आचार्य वरिष्ठ बीजेडी नेता सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवा आज्ञा निर्वाचन तारीख जेते पखाउछि आ मात्र कहले हाथ रे 2-3 दिन रहिला तो निर्वाचन उष्मता आउ अधिक वृद्धि पाइछि ए स्वाभाविक कथा जेतले निर्वाचन होई एवं निर्वाचन दिन जेते अधिक पाखे आसे निर्वाचन उष्णता बढ़े एटा एक स्वाभाविक प्रक्रिया एटा एते किछि नतनत्व नाही एवं लोकंकर उत्कंठा बढ़े लोकंकर आग्रह बढ़े एवं राजनीतिक दल मानकर व्यस्तता भी बढ़े सबु दलर कर्मी सबु दलर नेता चाहती निज दल निर्वाचन रे जीतु एटा एक स्वाभाविक कथा एते अस्वाभाविकता किछि नाही पुणी आसंता काली मुख्यमंत्री मध्य मैदान को ओह्लैबे कह जाउछि केते फलप्रद हबो केते लाभ मिलबो देखो पद्मपुर अंचल जनसाधारण चाहती जे मुख्यमंत्री को देखा मुख्यमंत्री ठारो द्विपद शुणा विरोधी दल तरफ कह जाउछि जे मुख्यमंत्री आसिले कोन जहा केंद्र मंत्री प्रश्न करिसेंती पद्मपुर को जिला घोषणा करिवे की मु बुझी पारु नै जे केंद्रर मान्यवर ज्ञानी अनुभवी मंत्री माने एपरी कथा किमती कहउछंती जे बिजू जनता दलर सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक को जेतेबेले देखा कले पद्मपुर प्रतिनिधि मंडल सेतेबेले श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक ताको निर्भर प्रतिश्रुति दिछंती संक्रांत रे एवं इतिहास साखी जे मुख्यमंत्री बा नवीन पट्टनायक आम दलर नेता सभापति जहाँ प्रतिश्रुति दियंती ताको पालन करती किंतु ताको क्रियान्वयन करिवार एक प्रक्रिया अछि आमे समस्त जानिछु जे वर्तमान निर्वाचन आचरण विधि लागू रही एक कथा कौन मान्यवर केंद्र मंत्री माने जानी नांती एवं जेतेबेले निर्वाचन प्रक्रिया चली थाए एवं निर्वाचन आचरण विधि लागू होता है निर्वाचन कमिशन कटकणा थाए केतेक तेणु से कटकणा भितर आमको कार्य करने पड़ो जो मैंने अच्छा देश में एपरी राजनेता अच्छा से कटकणा को विक्षेप करती आईन को अमान्य करती किंतु नवीन बाबू आईन को सम्मान दूसवा जड़े नेता जड़े शासक तेणु निर्वाचन आचरण विधिर परिसीमा भितर रही जहाँ करने कथा से कहा कथा से कहते एवं परवर्ती काल में आज जहाँ से कहते से कार्यकारी करेंगे सरकार ताको कार्यकारी करेंगे एथिरे पद्मपुर अंचल लोकंकर संदेह नहीं किछि विरोधी राजनीतिक दल नेतांकर संदेह होछि मुख्यमंत्री को गस्त पर भाबुचंती कि आहरी पॉजिटिव आसीबो जहाँ एबे अछि स्थिति देखंतु मु जा लक्ष्य करिछि विभिन्न अंचल रे जे मुख्यमंत्री को ठारो द्विपद सुनिबा पई तांको टिके देखिबा पई लोकंक भितर उत्कंठा अछि आग्रह अछि एवं से आग्रह एते तेणु मुख्यमंत्री आउछंती तांका निज लोकन को भेटिबा पई एथिरे किछि अस्वाभाविकता नहीं एवं स्वाभाविक भाव रे जे मुख्यमंत्री कर वार्ता लोकन को प्रेरणा देछि तांकर कार्य लोकन को प्रेरणा देछि तांकर प्रतिश्रुति रे लोकंकर विश्वास अछि एवं लोके जेतेले ताकू देखुचंती लोके आहुरी भाव विभोल होउचंती एवं समर्थन जणाउचंती विजय आपण भाबुचंती सुनिश्चित रहे सुनिश्चित एतिर संदेह अवकाश नहीं देखते जहाँ शुणुले वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रसन्न आचार्य कहवा कथा होची पद्मपुरवासी मुख्यमंत्री को देखापी चाहती मुख्यमंत्री ठार किसी शुणापी चाहती तेणुक लोकों को आसी मिसिबे मुख्यमंत्री 3टी जगह प्रचार करेंगे एवं यापर विजु जनता दल जहाँ वर्तमान स्थिति रही आउ सुदृढ़ हम दल निश्चय भाव बाजीमात कर पद्मपुर त्रिविक्रम प्रधान न्यूज 18 ओडिया होलसेल पायलट प्रकल्पर व्यवहार सफल होगा पर एबे खाउटी करिवे व्यवहार आज आरबीआई अनुमोदित ई मुद्रार खाउटी व्यवहार ने पायलट प्रकल्पर प्रचलन आरंभ होउछि एबे खाउटी व्यवहार करिवे ई रूपी बा ई मुद्रा पायलट प्रकल्पर खाउटी व्यवहार पई 8टी बैंक को अनुमति मिलितिबा बेले प्रथम पर्यायर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक ईएस बैंक और आईडीएफसी बैंक एथरे अंशग्रहण करूछंती परवर्ती पर्यायर बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी कोटक महिंद्रा बैंक एथरे शामिल हेबे प्रथम पर्यायर ई मुद्रा खाउटी पायलट प्रकल्प आरंभ मुंबई दिल्ली बेंगालुरु और भुवनेश्वर आरंभ होउछि परवर्ती समय अहमदाबाद गैंगटक गुवाहाटी हैदराबाद लखनऊ पाटना और शिमला रे व्यवहार करा जिवो बैंक गुडी माध्यम रे आरबीआई देब ई मुद्रा जो माने ई मुद्रा व्यवहार करबा को चाहिबे से माने अनुमति पाइथिबा बैंक रो डिजिटल वॉलेट व्यवहार करिवे मोबाइल रे एथि पई संपृक्त बैंक रो डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन रखिबा को पड़िबो व्यक्ति मध्य रे एवं व्यक्ति व्यवसाय मध्य रे ई मुद्रा प्रचलन करि हेबो क्यूआर कोड स्कैन करी याको व्यवहार करा जिवो बाजार उपलब्ध थिबा कागज टंका किबा धातव मुद्रार मूल्य सह ई मुद्रार मूल्य समान
पुणी यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनुमोदन करिथिबारु एहार 100% आईनगत वैधता रहुछि। आगुरी जानते भाई फ्रड होती रोकने गुड़ाए जिन जमी आप कहले एक्चुअल पासवर्ड है आप ओटीपी है यू सिस्टम इनकर्पोरेट कराई बर्तमान से जिनस को आहरी स्ट्रंगर करा साइबर सिक्यूरीटी मान एक्सपर्ट से जो पायलटिंग मोडटा ये सब जी सिक्यूरीटी को नहीं जो नियमावली निश्चिंत आग्रह करा जेहेतु आपको गवर्नमेंट बैकिंग करुच्ची आरबीआई निजे बाहर करुच्ची तेणु जहाँ जहाँ सब सिक्यूरीटी फीचर से निश्चिंत रूपे नेबे आधेर करेंगे जो बैंक अकाउंट रू से आनी पार्टी डिजिटल करेन्सी मोड को डिजिटल करेन्सी पुणी बैंक अकाउंट नहीं पारे डिजिटल करेन्सी रखिले आपको कौन सुध पड़ो ना जो एक्चुअल जो माने कस्टमर रखिए तो कौन सुध पड़ोनी तेणु जो निहाती दरकार थी डिजिटल करेन्सी कन्वर्ट करेंगे ना बैंक को आउ थे रिकन्वर्ट करेंगे आप जमी कहले फिजिकल रू डिजिटल फिजिकल को ताकू भी हो पार उपनिर्वाचन कंपुची पद्मपुर मैदान एथर लड़ाई अभिज्ञ बनाम युव नेतृत्व प्रसंग पलटि चाषी बुणाकार समस्या जिला मान्यता को नहीं भी लगी छक्का पंजा एथर नो रिस्क शासक दल पर सम्मान बड़ रणनीति बाजीबात बीजेपी शेष लड़ई रे शक्ति देखाइब हाथ भोट देव पद्मपुर ग्राउंड जीरो रु दमदार कवरेज न्यूज 18 ओडिया रे। News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed. शिक्षकों आंदोलन स्थगित आंदोलन ओहरिला प्राथमिक शिक्षक संघ हेले एथिपाई राज्य सरकार को डिसेम्बर 20 तारिख पर्यंत महलत देछि संघ 3 दफा दाबी पूरण नहले पुणी डिसेम्बर 21 तारिख जोरदार आंदोलन कराजिबो बोली कहिछि शिक्षक संघ 3 दफा दाबी नहीं गत रविवार विधानसभा आगरे हजार हजार शिक्षक आंदोलन चलाइथिले आंदोलनकारी शिक्षकों सह राज्य सरकार 3-3टी बैठक फेल मारिथिला दाबी पूरण पाई महलत मागिथिले सरकार आउ शिक्षक संघ सरकार को महलत देवा सह आंदोलन को स्थगित रखिछि जिद्रे अटल आईनजीवी मानिलेनी सर्वोच्च अदालत निर्देश हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी रे संबलपुर रे जोरदार आंदोलन करछन्ती वकील आंदोलन बेले पुलिस एवं वकीलों मध्य होईछि प्रबल धस्ताधस्ती व्यापक फोर्स एवं अधिकारी उपस्थित सत्वे रास्तारू आंदोलनकारी को हटाई पारलेनी पुलिस कोर्ट को जाई पारलेनी विचारपति वकीलों आंदोलन जोगु संबलपुर रे समस्त सरकारी कार्यालय बंद रहितला जिला वकील संघ कहिछि लाइसेंस बातिल कले भी हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी आंदोलन पछघुंचा देबु नाही आरंभ होला मेक इन ओडिशा कनक्लेव रो तृतीय संस्करण मेक इन ओडिशा कनक्लेव को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उद्घाटन करछन्ती मुख्यमंत्री कहिसन्ती फिकी सहयोग रे राज्य रो अधिक पुंजी निवेश हेबो पूर्व भारत रे व्यवसाय वाणिज्यर पेंठस्थली पालटिछि ओडिशा शिल्पायन पई ओडिशा एक प्रकृष्ट स्थान फिकी ए दिगरे अधिक सहयोग करू बोली आशा करछन्ती नवीन कनक्लेव रे प्राय 600टी स्टॉल बुली देखिछन्ती नवीन समारोह रे शिल्प मंत्री प्रताप देव जोगदेई 2036 सुधा विकसित ओडिशार लक्ष्य धार्य करा जायछि कृषि और दक्षता विकास पर एबे शिल्प क्षेत्र को सरकार गुरुत्व देउथुबा शिल्प मंत्री कहिसन्ती नुआपड़ा जिला खड़ियाल रोड स्थित नियंत्रित बजार कमिटी प्रांगण में चलित खरीफ वर्ष पर धान मंडी आरंभ होइछि नुआपड़ा जिलापाल पूजा पाठ करी धान मंडीर शुभारंभ करछन्ती चलित वर्ष नुआपड़ा जिले में 72 गोटी पीसीसी रही लेडी ब्लैकमेलर अर्चना नाग गिरफ मामला आज ईडी हाजर होइछन्ती होटेल व्यवसायी शिव प्रसाद दास व्यवसायी शिव प्रसाद को हाजर हेबा पई समन करथिला ईडी आर्थिक कारबार नै शिव प्रसाद को पचराउचरा करूछि ईडी अर्चना एवं शिव दासक मध्यरे टंका कारबार होइथिबा सूचना
होटेल व्यवसायी शिव प्रसाद 2019 रे होटेल चलाउथिले। होटेल ताज ओडिशा को एबे से लीज रे दैछंती एवं 2019 रु अर्चना को संपर्क रे थिले। अर्चना एवं श्रद्धांजलि शिव प्रसाद को होटेल रे बहु समय बिताइछंती। ए होटेल रे हनी ट्रैप रो डील हेउतला बोली संदेह करा जाउची। अर्चना किभळे डील करंती ताहा वीडियो स्पष्ट बारी हेउची। अर्चना एवं श्रद्धांजलि ए होटेल नियमित जाउथिले एवं सेपटे अर्चना स्वामी जगबंधु जमीन एडीजे कोर्ट रे खारज होइतबा बेले आज खोर्धा सेशन कोर्ट रे जमीन आवेदन करछंती अर्चना। खोर्धा जिला जंकिया थाना बड़ पोखरिया निकट रे आज भोरु एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। रास्ता कड़े छिड़ा होइतबा एक ट्रक को द्रुत गति रे आसुथबा एक कार पिटी देबारु घटनास्थल रे 4 जनकर होइछि मृत्यु। मृतकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଯୁବକ ଏବଂ 2 ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ଟି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭୋରୁ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରକଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ NH16 ର ବଡ଼ ପୋଖରିଆ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଭୋରୁ କୁହୁଡ଼ି ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା କାର୍ଟି ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର ଭିତରେ 2 ଯୁବକ ଏବଂ 2 ଯୁବତୀ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି କାର ଭିତରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ। ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ସଡଙ୍ଗୀ ଗାଁର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା ମଗ୍ଜି ଏବେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ ବା GI ଟ୍ୟାଗ। एथिपाई 2020 मसीह ओडिशा कृषि वैषयिक विश्वविद्यालय तथा ओयूएटी पक्षर एने आवेदन करा परवर्ती समय जीआई रो एक्सपर्ट टीम यार प्राथमिक परीक्षण शेष करते। महिषी क्षीर छेनारू प्रस्तुत यह मग्जी मिठा एते स्वादिष्ट जीए भी यहाँ थे खाई सी मजी जा 150 वर्ष पूर्वे यह मग्जी गंडिया सडंगी गाँव में प्रस्तुत होता। से समय चक्रधर साहू नामक जड़े गुड़िया व्यवसायी प्रथमे सडंगी बसस्टाण्ड निकट एक मिठा दुकान खोली यह मगजी विक्रय आरंभ करते। एबे यही स्वादिष्ट मिठा मगजी पार्श्ववर्ती मंदार भुवन गंदिया विधारपुर देवगां समेत ढेंकानाल टाउन समस्त मिठा दुकान मानक पहुंची सारी। पड़ोशी जिला अनुगुल केउझर जाजपुर कटक आदि अंचल लोक मैंने गंदिया और सडंगी गाँ दे अतिक्रम करुवा बेले मग्जी खाइबा को अटकी जाती। बंडा युवक लकीनाथ कारसारी सफलता पाराग्लाइडिंग करने सह युद्ध जहाज नेले प्रशिक्षण। बंडा जनजातिर प्रथम युवक भावे से गौरव हासिल कर परकनमाल गाँव लकीनाथ एवं मालकानगिरी महाविद्यालय अध्ययन कर जातीय समर शिक्षार्थी बाहिनी जूनियर अंडर ऑफिसर लकीनाथ केसानी आग्रा स्थित भारतीय वायुसेना शिविर में भाग नहीं। नवेम्बर 1 रु 25 तारीख पर्यंत विभिन्न रणकौशल प्रशिक्षण नेवा सहित पाराग्लाइडिंग तालीम नेले। फाइटर प्लेन रु पाराचूट रे अवतरण कर असीम साहसर परिचय देछन्ते। तांकर कृतित्व पई तांको मालकानगिरी महाविद्यालय पक्षरु लकीनाथ को संबर्धित करा जायछि। आज आरंभ होउछि कोणार्क उत्सव और अंतर्जातीय बालुका कला महोत्सव। एथिपाई उत्सव मुखर होई उठिछि पर्यटन स्थली कोणार्क और चंद्रभागा बेलाभूमि। मुक्ताकाश रंगमंच रे शास्त्रीय और ओडिसी नृत्यर मजा उठाइबे दर्शक। डिसेम्बर 5 तारीख पर्यंत 5 दिन धरी विभिन्न कलाकार नृत्य परिवेशन करेंगे। संध्यारे ओडिसी कथक मणिपुरी मोहिनीआट्टम भारतनाट्यम आदि नृत्य परिवेशन सहित चंद्रभागा बेलाभूमि रे देश विदेश शताधिक बालुका शिल्पी विभिन्न प्रसंग में निखुण कला प्रदर्शन करे। यह अवसर में हस्तशिल्प प्रदर्शनी हेलीपैड रे अपेरा मीना बजार पुस्तक मेला साहित्य आसर भली कार्यक्रम दर्शकों को आकृष्ट करिब। केन्दुझर जिला चंपुआ रेंज चमकपुर जंगल में गत अक्टोबर मास 26 तारीख चिकित्सा चलता दंता हाथीर मृत्यु घटी। अन्य एक दंता हाथी सहित संघर्ष में असुस्थ दंता हाथी प्राण हराई सूचना। चमकपुर जंगल में यह गोठ छड़ा दंता हाथीर आगपट डाहाण गोड़े क्षत होता कारण से ठीक भाव चली पार ना। दंताटी छोटे चलुवा वन विभाग जाना पर तार चिकित्सा प्रयास आरंभ कर। WTI OUAT और नंदनकानन विशेषज्ञ दल में ट्रांकुलाइज टीम सहित 6 जणिया वन्य प्राणी चिकित्सक सामिल रही। केन्दुझर डीएफओ तत्वावधान में 2 जण एसीएफ रेंजर वन अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रही हाथी को ट्रांकुलाइज करने पर डाक्तर हाथीर चिकित्सा करते। गतकाली अन्य एक दंता हाथी सहित संघर्ष में हाथीर मृत्यु घटी जनापड़ी।
ब्रह्मपुर रेल स्टेशन रु 4 जन यात्री को अचेत अवस्था जीआरपी थाना पुलिस उद्धार करिछि। उद्धार होइतबा 4 जनक मध्यरु 2 जनक परिचय मिलिछि। सेमाने आंकुली अंचलर के सुभाष आचार्य एवं के सुमित आचार्य। उद्धार परे समस्त को ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल में भर्ती करा जायछि। पुरी गुणपुर ट्रेन रे सेमाने ब्रह्मपुर को आसुथिले। साखी गोपाल ठारे केही व्यक्ति सेमानंको पैड पीबाकू दैथिले। यहाँ परे सेमाने चेता शून्य हेबा परे तांको पाखरे थिबा टंका मोबाइल सह अन्य सामग्री चोरी होइछि। खोर्धा तापंग रेलवे स्टेशन रे अघटन ट्रेन उपरे चढ़ी सेल्फी नेबा बेले मळीपड़ार जने युवती आज सकाळू ट्रेन उपरे चढ़ी सेल्फी नेबा बेले विद्युत आघात रे गुरुतर होइछन्ति। ताको गुरुतर अवस्था खोर्धा जिला मुख्य चिकित्सालय और सेठर भुवनेश्वर स्थानांतरित करबा बेले रास्ता रे मृत्यु होइबा सूचना। 2012 मसीहा जाजपुर जिला बड़चना थाना तिलपदा गाँव रवींद्र मलिक हत्याकांड घटना रे दंडादेश। एही हत्याकांड मामला रे अन्यतम अभियुक्त बापिन मलिकों को आजीवन कारा दंडादेश सुनाइछन्ति जाजपुर अतिरिक्त जोरा जज। 2012 मसीहा अगस्त 24 तारिख दिन तिलपड़ा गाँव रवींद्र को बापिन एवं अन्य 5 अभियुक्त पूर्व शत्रुता को केन्द्र करथिले हत्या। ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ 2015 ମସିହାରେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ। ଅଦାଲତ 28 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପିନଙ୍କୁ ଏହି କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନଟ ମଲ୍ଲିକ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଫେରାର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ସକାଳର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନିଆଁ ସେକି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। चलित वर्ष शीत आरंभर देवगढ़ तापमात्रा 15 डिग्री तले रहुवा बेले प्रबल जाड़ अनुभूत होउछि। सेबडे शीतुआ सकाळ रे जमुछि चा खटीर आसर। राउरकेला रे बढुछि शीतर प्रकोप। सकाळ सकाळ सहर रे कुहुडी सांगकु शीतर पवन मंज धराई देउछि। शीत दिन रे निज शरीर को सुस्थ रखिबा पई लोके रास्ता रे एवं पार्क गुडी करे मॉर्निंग वॉक एवं योग व्यायाम करुवा देखबा मिलुछि। चा दुकान रे भी जमुछि खटी। आगकु शीत आउरी बढ़िबार आशंका। बीएमसी अलिया गाड़ी चक्का तले चलीगला जीवन। भुवनेश्वर बीएसएस नगर अलिया गदा निकट में जड़े महिला गाड़ी चढ़ी जबार मृत्यु होइछि। अन्य जने गुरुतर होइछन्ति। मृतक जनक स्थानीय बस्तीर सुकांती नायक। सुकांती संपर्क सह एक बाइक रे जाउथबा बेले पछरु धक्का देथिला ट्रक। दुर्घटना परे प्राय 100 मीटर दूर को मृतदेह घोषारी हो जाइता। सेबडे दुर्घटना परे ड्राइवर फेरार होइछा। जाजपुर जिला पाणीकोइली थाना सठीपुर निकट में अजना गाड़ी रे धक्का जड़े मृत जड़े गुरुतर। मृतक हेले भद्रक जिला तिहिड़ी ब्लॉक दीनबंधु मलिक। आहत व्यक्ति जनक हेले सही अंचल प्रशांत मलिक। एमाने निज बाइक रे कटक जाउथबा समय एक अजना गाड़ी सहित धक्का होइतला। 2 जन को गुरुतर अवस्था रे जाजपुर मुख्य डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइतला। 2 जनक भितरु डाक्टर दीनबंधु को मृत घोषणा करथिले। खबर पाई पाणीकोइली पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिछि। पुरी रे गुटका गोदाम उपरे चढ़ाऊ। जिला टबाको कंट्रोल एनफोर्समेंट स्क्वाड जबत करिछि विपुल परिमाण बेआईन तमाखु। पुरी कुमारपड़ा थाना अंतर्गत माटियापड़ा छकर श्रीराम भंडारर 2टी गोदाम उपरे होइछि चढ़ाऊ। प्राय 23 लाख टंकार बेआईन तमाखु एवं गुटखा जबत कराଯାଇଛି। सेबरे टाउन थाना अंतर्गत रामचंडी साहिर 2टी अपार्टमेंट उपरे चढ़ाऊ करी बेआईन टबाको जबत कराଯାଇଛି एवं गोदाम को सील कराଯାଇଛି। मिलित चढ़ाऊ रे अबकारी विभाग पुलिस विभाग फूड सेफ्टी ऑफिसर सामिल थे। जातीय स्तर गणमाध्यम एनडीटीवी छाड़िले जनाशुना तथा प्रतिष्ठित सांबादिक रवीश कुमार। चैनल प्रतिष्ठाता तथा प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड बोर्ड निर्देशक पदर इस्तीफा देवार गोटे दिन पर वरिष्ठ सांबादिक रवीश कुमार बुधवार एही चैनल रु दैछंती इस्तीफा। एने रवीश कुमार एक मेल माध्यम रे चैनल कर्तृपक्ष को इस्तीफा पत्र पठाइथिबा बेले याको ग्रहण करा जाइथिबा सूचना मिलिछि। एनडीटीवी ग्रुप रो सभापति सुपर्णा सिंह कहिसंती जे रवीश भली अल्प किछि सांबादिक निजर खबर प्रसारण जादू रे लोकन को प्रभावित करिवार क्षमता रखंती। प्रथम थर पर यूक्रेन आक्रमणर वीडियो जारी करिछि रूसिया। रूसिया सीमा रे जळीगला तैल टैंकर। बुधवार रूसियार बेलारूस और यूक्रेन सीमा को लागिଥିବା अंचल रूसियार एक तेल टैंकर रे निया लागि जाइଥିବା सूचना। यूक्रेन सीमा को लागिଥିବା रूसियार अंचल गुड़िकरे प्रथमे रूसिया गुळीगोळा माड़ करितला। यार दिनक परे आसीछि ए दृश्य।
ब्रेयान अंचल राज्यपाल आलेक्जेंडर बोगमात सोशल मीडिया एक चिठी लिखिं उल्लेख रही पेट्रोलियम टैंक रे निया लगी बेलारूस ठारू दक्षिण में 10 किलोमीटर दूर एवं यूक्रेन चेर्निक अंचल ठारू 40 किलोमीटर दूर में यह स्थानटी अवस्थित। तेरे पेट्रोलियम टैंकर रे केमिति निया लागिला किंबा या पछरे काहार हाथ किछि जणा पड़ी नाही। तेरे रूसिया ए वीडियो जारी करी आक्रमण पछरे यूक्रेन थिबा इशारा करिछि। रूसिया यूक्रेन युद्ध को नहीं आसुछि बड़ खबर। खूब शीघ्र युद्ध रे रूसिया व्यवहार करिवो नेक्स्ट जेनेरेशन वेपन बा अत्याधुनिक युद्धास्त्र। प्रतिरक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को एने निर्देश दिया जाय सारिछि एवं रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन निर्देश दे सारिछन्ति। रूसिया चलाइथिबा युद्ध रे अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र गुडी को व्यवहार करने को प्रतिरक्षा मंत्री को निर्देश दैछन्ति पुतिन। पुतिन को निर्देश संपर्क में रूसिया प्रतिरक्षा मंत्री एक बोर्ड बैठक में सूचना दैछन्ति। तेबे सबुठ चिंतार विषय हेउछि केउ अस्त्र व्यवहार संपर्क में पुतिन तांको निर्देश दैछन्ति ताहा से खुलासा करिना। अनुमान करा जाउछि रूसिया यार युद्ध परिचालन रे स्ट्रैटेजिक शिफ्ट बा रणनीतिक परिवर्तन आनी पारे। 9 मास धरी चलिलाणी युद्ध या परे भी रूसिया सैन्य को पछकु घुंचिबा को पड़ुछि। एमिति अवस्था रूसिया दीर्घ लक्ष्यभेदी अस्त्र शस्त्र ड्रोन एवं मिसाइल निरोधी सिस्टम अधिक व्यवहार करि पारे। रूसिया प्रतिरक्षा मंत्री कहवा कथा ये युद्ध में मिसाइल एवं आर्टिलरी बड़ भूमिका ग्रहण करिसेंति। सहित आगामी 2023 सुधा रूसिया परमाणु अस्त्र भित्तिभूमि तैयारी करने को प्रस्तुत हेउछि। रूसिया एवं बेलारूस रे 100 रु अधिक तालीम शिविर 3 लाख स्वेच्छासेवी उत्तीर्ण हो सारे ये समस्त रूसिया युद्ध मैदान को ओह्लाई पारे। यह सहित सर्गेई कहते जे वर्तमान युद्ध जेमिति चली 2023 बेलू रूसिया प्रतिरक्षा बजेट 150 गुण बढ़ी जाइथिबो। ये सबको नजर रखी रूसिया किपरि यार अमोघ अस्त्रगुड़ी यूक्रेन विरोध में व्यवहार करिबो से चिंता करुछि। पूर्व रूसिया परमाणु अस्त्र आक्रमण भय देखाउथिला। याहारी भितरे पुतिन का एही नेक्स्ट जेनेरेशन अस्त्र शस्त्र पुणी नुआ चर्चा आरंभ होइछि। प्रकृत में केउ अमोघ अस्त्र कथा कहउछन्ति पुतिन ताहा स्पष्ट न हेबा पुतिन को गुप्त रणनीति आड़क इशारा करुछि। यूक्रेन को पुणी एक बड़ धरणर सहायता देव अमेरिका। रूसिया आक्रमण में छाकार कीव को अमेरिका देव 53 मिलियन अमेरिकीय डॉलर एने सूचना दैछन्ति अमेरिका वैदेशिक सचिव एंटोनी ब्लिंकेन। रूसिया आक्रमण में कीव रे ध्वस्त विध्वस्त हो जाइथिबा बिजुली ग्रिड मरामती रे एही बड़ धरणर अर्थ विनियोग हेबो। ए पैकेज रे रहिछि बिजुली ट्रांसफार्मर सर्किट डिस्कनेक्टर गाड़ी तथा अन्य बिजुली संपर्कित सामग्री। तेरे एतिक रे यूक्रेन को सहायता देबारे अटकी जीवनी अमेरिका। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी सूचना अनुसार बिडेन प्रशासन निर्देश $1 बिलियन खर्च केवल यूक्रेन एवं मालडोभारे करने को बजेट प्रस्तुत करिछि अमेरिका। सुरक्षाकर्मी को गुली रे निहत होइछि आईएसआईएस मुख्य अबू हसन अल हासिमी अल क्यूरेशी। युद्धरे अबू हसन मृत्यु घटिबा आतंकवादी संगठन आईएस सूचना दैछि एवं संगठन जने मुखपात्र कहिसंति जे भगवान को शत्रुक सह लड़ाई करबा बेले अबू हसन को मृत्यु घटिछि। तेबे केउठी लड़ाई होइथिला एवं केमिति से निहत हेले से विषय संगठन कोनोसी प्रकार विस्तृत तथ्य देई नाही। अबू हसन निहत होइतिबार संगठन पक्षर नुआ मुखियार ना घोषणा करा जायछि। एनिकी ए कुख्यात आतंकवादी संगठन मुखिया भावे अबू अल हुसैन अल क्यूरेशी काम करिबो। संगठन पक्षर अबू अल हुसैन संपर्क में विस्तृत तथ्य दिया जायनि किंतु कहा जायछि जे से जने वेटेरान आतंकवादी संगठन समस्त सदस्य ता प्रति अनुगत्य रखिछन्ति। एनिकी ता हिसाब रे संगठन काम करिबो। पुणिथारे अफगानिस्तान रे एक बड़ धरणर विस्फोरण घटी। विस्फोरण आईबाक सहर एक विद्यालय घटी। विस्फोरण में प्राय 16,000 मृत्यु घटिबा बेले अति कम 24 जन आहत होइछन्ति। बुधवार अपराह्न प्रार्थना समय विस्फोरण घटी। विस्फोरण पर 16 जनक मृत्यु होइतिबा बेले 24 जन आहत होइछन्ति। समस्त आहतों को डाक्तखाना भर्ती करा जायछि। अफगानिस्तान तालिबान सरकार दैथिबा सूचना अनुसार विस्फोरण में प्राण हराइथिबा 16 जनक मध्य 10 जन छात्र अछन्ति। तेबे विस्फोरणर कारण वर्तमान सुधा जना पड़ी नाही। दुनियार अनेक देशर सरकार समलिंगी विवाह को आईनगत स्वीकृति दैछन्ति। समलिंगी विवाह को आईनगत स्वीकृति दैथिबा देश तालिका रे वर्तमान अमेरिकार नाम जोड़ा जायछि। नवेम्बर 30 रे समलिंगी विवाह को अमेरिका रे आईनगत स्वीकृति मिलिछि। एही दिन अमेरिका पई ऐतिहासिक दिन। अमेरिकार संसद द्वारा समलिंगी विवाह बिल पारित हेबा सहित सुप्रीम कोर्ट को 2015 निष्पत्ति पर विवाह करिथिबा हजार हजार समलिंगी दंपति को आश्वस्ति मिलिछि।
निष्पत्ति अनुसार समग्र देश में समलिंगी विवाह को आईनगत मान्यता दि जाइथिला। या सहित वर्तमान दुनिया अति कम 32 देश में समलिंगी विवाह को अनुमति दि जाइछि। होलसेल पायलट प्रकल्पर व्यवहार सफल होगा परे एवं खाउटी करिवे व्यवहार। आज आरबीआई अनुमोदित ई मुद्रार खाउटी व्यवहार नहीं पायलट प्रकल्पर प्रचलन आरंभ होउछि। एवं खाउटी व्यवहार करिवे ई रूपी बा ई मुद्रा पायलट प्रकल्पर खाउटी व्यवहार पई 8टी बैंक को अनुमति दिबा बेले प्रथम पर्यायर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, येस बैंक एवं आईडीएफसी बैंक एथे अंशग्रहण करिवे। परवर्ती पर्यायर बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एथे शामिल हेबे। प्रथम पर्यायर ई मुद्रा खाउटी पायलट प्रकल्पर आरंभ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर आरंभ कराजिबो। परवर्ती समय अहमदाबाद, गैंगटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, पटना और सिमला रे कराजिबो। बैंकगुड़िक माध्यम आरबीआई हेबो ई मुद्रा। जो माने ई मुद्रा व्यवहार करने को चाहिए से माने अनुमति पाइथिबा बैंक डिजिटल वॉलेट व्यवहार करेंगे। मोबाइल रे एथिपाई संपृक्त बैंक डिजिटल वॉलेट एप्लिकेशन रखा पड़ो। व्यक्ति व्यक्ति मध्य एवं व्यक्ति व्यवसाय मध्य ई मुद्रा प्रचलन करें। एवं आसतु मेक इन ओडिशा कनक्लेव सीधा सड़क चित्र देखा। लक्ष्मी मित्तल वर्तमान कौन कहते मेक इन ओडिशा कनक्लेव सीधा ओडिशा कॉन्क्लेव। माय कांग्रेचुलेशंस टू चीफ मिनिस्टर एंड हिज टीम फॉर हैविंग सच ए वंडरफुल गैदरिंग ऑफ ऑल द ऑडियंसेस हियर एंड ऑल द इंडस्ट्री कैप्टन्स हियर। माय कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर महापात्रा and Mr. Hiren Sharma for such a powerful and appealing speech and the messages what they have given. Normally I hear these kind of speeches from politicians, but this is the first time we hear these speeches from the bureaucrats. I must say that all the messages what they have conveyed, my dear Chief Minister, that they are very convincing, very appealing, and under your leadership, this state has a great future. I must say that I have got great experience working with Chief Minister Naveen Patnaik, and I can say that when we heard from Mr. Sharma and Mahapatra about the speed of decisions, I have one very important anecdote. In last year 21, I was having a meeting with the Honorable Chief Minister and we discussed about our potential investment in Kendrapara, the constituency of late Biju Patnaik, and we had spent some time discussing. Then suddenly the idea developed that we should sign memorandum of understanding of our discussion for potential plant in Kendrapara. It was around midday, like the same time, and Chief Minister decided that we should sign that MOU at 2 p.m. I thought it was just a joke, but I must say that within 2 hours we could sign MOU with this Odisha government. So this is the speed we hear from a lot of people, a lot of states, but this is the speed I have not seen anywhere in the world even. I have a great privilege of knowing not only Mr. Naveen Patnaik, but also his late father, Mr. Biju Patnaik. Perhaps only few of you may know that I had the privilege of getting my Indonesian plant in Surabaya inaugurated by the late Biju Patnaik as Minister of Steel in 1978. At that time I could not have even dreamed that I would be sitting with the able Chief Minister today and signing the agreement to invest more in Odisha. So thank you very much, and I have a great admiration for Chief Minister. I got lot of messages
from Mr. Sharma and Mahapatra about Odisha, about Jagannath, about all the privileges, incentives, the potential, the reach, the infrastructure, and the richness of this state. Second, I also learned this morning that this is one of the most financially strong state in the country where really there is no deficit. And you really find only very few states in India which are financially so strong. So it all goes to the leadership of the Mr. Patnaik and the bureaucracies and all the ministers in this state. To acknowledge that we like this state, we have decided to invest in steel plants in Kendrapara and in Paradeep. We already have investments in mining area, we have beneficiation pellet plant, but that naturally leads to creating value through making steel in this state. Perhaps some of you already know that ArcelorMittal has the most leading technologies in steel in the world. We have one of the largest research and development facilities. We supply steel to all the most complicated and complex application of steel. And what we heard that we will like to bring those technologies to this state as well. So we are not only going to produce steel, but we are also going to bring technologies which is very much required for the future sustainability and climate change. So I'm very proud, very happy that we are endorsing the vision of this state by signing some of the MOUs today. And as it is in my various meetings this morning, I could see that all the government machineries have already started working even before we have signed the MOU, which shows that the government is very active, very pro-business, very business-friendly. So these will all support for future growth and investment in this state. So thank you very much and congratulations to the Chief Minister and wish you all the success. Thank you. Thank you, Shri Lakshmi Nivas Mittal, for your kind. News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed. शिक्षकों आंदोलन स्थगित आंदोलन ओहरिला प्राथमिक शिक्षक संघ हेले एथिपाई राज्य सरकार को डिसेम्बर 20 तारिख पर्यंत महलत देछि संघ 3 दफा दाबी पूरण नहले पुणी डिसेम्बर 21 तारिख जोरदार आंदोलन कराजिबो बोली कहिछि शिक्षक संघ 3 दफा दाबी नै गत रविवार विधानसभा आगरे हजार हजार शिक्षक आंदोलन चलाइथिले आंदोलनकारी शिक्षकों सह राज्य सरकार 3-3टी बैठक फेल मारिथिला दाबी पूरण पाई महलत मागिथिले सरकार आउ शिक्षक संघ सरकार को महलत देवा सह आंदोलन को स्थगित रखिछि जिद्रे अटल आईनजीवी मानिलेनी सर्वोच्च अदालत निर्देश हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी रे संबलपुर रे जोरदार आंदोलन करछन्ती उकिल आंदोलन G20 अध्यक्षता भार आज आनुष्ठानिक भाव ग्रहण कर भारत अर्थात दुनियार पंचम आर्थिक व्यवस्था भाव विश्वर आर्थिक एजेंडा को रूप और गति देवा दायित्व भारत तुलाइब भारत G20 अध्यक्षता पद ग्रहण को एक उत्सव भाव पालन करने को स्वतंत्र आयोजन कर केंद्र सरकार यह ऐतिहासिक मुहूर्त को स्मरणीय करने आज 7 तारिख जाए देशर 100टी ऐतिहासिक स्थल में G20 लोगो को आलोकमाल सजाजिब या आखपाखर विभिन्न कार्यक्रम आयोजन कर पूर्व भारत G20 अध्यक्षता कर घोषणा कर सारी आज केवल औपचारिकता पूरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज निज ट्विटर हैंडल भारत G20 अध्यक्ष भार संभाली घोषणा कर औपचारिकता पूरण करेंगे
सहित G20 आनुष्ठानिक ट्विटर हैंडल भारत नियंत्रण को आसीज। गत मासरे इंडोनेशियार बाली में होता G20 सम्मेलन में यह समूहर प्रतीक काठर हातुड़ी को नरेंद्र मोदी को दि जाइला। दायित्व मिलिबार प्रथम सप्ताह भारत अध्यक्षतार G20 देशर बैठक डिसेम्बर 4 रु 7 तारिख जाए राजस्थान उदयपुर आयोजित हो। याछड़ा आसंता 2 मास भितर मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलोर आदि सहर में 7टी गुरुत्वपूर्ण बैठक आयोजन कर कार्यसूची रही। मिलिथिबा सूचना अनुसार देशर 50टी सहर में 200 बैठक करने को योजना होईछि। भारत G20 अध्यक्षता दायित्व तुलाइबा नहीं घोषणा हेबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 लोगो थीम वेबसाइट उन्मोचन करथिले। G20 लोगो रे लेखा रही वसुधैव कुटुंबकम और थीम रही गोटे विश्व, गोटे परिवार और गोटे भविष्य। आज गुजरात में प्रथम पर्याय निर्वाचन 19 जिलार 89 आसन में मतदान। 788 जन प्रार्थी भाग्य परीक्षा। मध्य 70 जन महिला प्रार्थी थिबा बेले स्वाधीन प्रार्थी संख्या 3392 कोटी 39,67,670 भोटर करेंगे। 788 जन प्रार्थी भाग्य मध्य 1,24,33,362 जन पुरुष भोटर थिबा बेले महिला भोटर संख्या 1,15,42,430 बूथ रे मतदान देवे। से बैलेट पेपर व्यवस्था कर निर्वाचन कमिशन। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ स्वतंत्र व्यवस्था। महिला भोटरों पिंक बूथ व्यवस्था कर। प्रथम पर्याय दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र अंचल में मतदान। यह रही सभी नजर। बीजेपी और कांग्रेस फाइट होता बेले आम आदमी पार्टी एंट्री एथर निर्वाचन को रोचक मोड़ में छिड़ा कराई। 89 आसन में गत विधानसभा निर्वाचन में कांग्रेस भल प्रदर्शन करथिबा बेले एथर बीजेपी बाजी मारिबा नहीं जोर लगाई। गुजरात रे निज दल आम आदमी पार्टी प्रचार में व्यस्त पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। एबे आसंतु बैक इन ओडिशा सीधासलख चित्र देखिबा। अनिल अग्रवाल कौन कहउछंती निज अभिभाषण। बीजू बाबू से मिला, अभी भी याद है, पीले रंग की कोठी थी। उनकी बहुत इच्छा थी कि कालाहांडी में कुछ काम करो, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए कि नहीं किए। मैंने कहा मैं जाता हूँ, बोले वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। तो जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, लेडी सुभद्रा, उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे नवीन बाबू चीफ मिनिस्टर, उनके कार्यकाल में 22 सालों से मैं देख रहा हूं कि जिस तरह की उन्नति, जिस तरह की प्रोग्रेस, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, जो हम लोगों को कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। 80,000 करोड़ रुपए लगाने थे, पैसे की कमी थी, जगह की कमी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी, आदमियों की कमी थी, लेकिन कहीं ना कहीं से एक आदमी इतना स्ट्रांग पीछे हमारे खड़ा था, जिसकी वजह से ये हमने प्रोजेक्ट लगाए। और बहुत खुशी की बात है, ये मैं कह सकता हूं कि दुनिया में लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करे। हिंदुस्तान एक इंपोर्टर बनकर रहे, लेकिन उड़ीसा ने उसको टर्न किया। हर एरिया में उन्होंने पूरी, मैंने देखा है जो बदलाव बीजू बाबू की लेगेसी में जो नवीन बाबू ने किया, वो अनमैचेबल है। उड़ीसा में आज मैं देखता हूं कि क्या नहीं है। आप हर तरह से देखेंगे तो, जैसे उन्होंने बताया, सरप्लस, हमारे सारे आज उद्योगपति, हमारे जो हमारे सबसे खास दोस्त हैं, सज्जन जी, नवीन बाबू, नवीन जिंदल, हमारे एलन मित्तल, हमारे सीमेंट वाले सारे लोग यहाँ पे हैं। सारे लोग, मैं सभी देशों में 2-3 स्टेट में गया हूँ, सारे स्टेट आज बुला रहे हैं लोगों को, लेकिन इतना उत्साह, इतनी भीड़ मैंने और कहीं स्टेट में नहीं देखी। News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed.
शिक्षकों आंदोलन स्थगित आंदोलन ओहरिला प्राथमिक शिक्षक संघ हेले एथिपाई राज्य सरकार को डिसेम्बर 20 तारिख पर्यंत मोहलत देछि संघ 3 दफा दाबी पूरण नहले पुणी डिसेम्बर 21 तारिख जोरदार आंदोलन कराजिबो बोली कहिछि शिक्षक संघ 3 दफा दाबी नहीं गत रविवार विधानसभा आगरे हजार हजार शिक्षक आंदोलन चलाइथिले आंदोलनकारी शिक्षकों सह राज्य सरकार 3-3टी बैठक फेल मारिथिला दाबी पूरण पाई मोहलत मागिथिले सरकार आउ शिक्षक संघ सरकार को मोहलत देबा सह आंदोलन को स्थगित रखिछि जिद्रे अटल आईनजीवी मानिलेनी सर्वोच्च अदालत निर्देश हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी संबलपुर में जोरदार आंदोलन करछन्ती वकील आंदोलन बेले पुलिस और वकीलों मध्य होईछि प्रबल धस्ताधस्ती व्यापक गुजरात विधानसभा निर्वाचन प्रथम पर्यायर 89टी आसन पर भोटिंग जारी 788 प्रार्थी भाग्यर फैसला करुछंती 2 कोटी अधिक मतदाता सकाळ 9टा सुधा 4% मतदान बीजेपी कांग्रेस आप भितर त्रिमुखी लड़े कड़ा सुरक्षा व्यवस्था मेक इन ओडिशा कनक्लेव द्वितीय दिन आज 2022 वर्षर शिल्प नीति घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री मेगा व्यवसाय सम्मेलन में 20 रु अधिक एमओयू स्वाक्षरित होगा संभावना ब्लैकमेलर लेडी अर्चना नाग मामला ईडी खोलताड़ जारी हाजर हेले व्यवसायी शिव प्रसाद दास अर्थनैतिक कारोबार नहीं पचरा उचरा अर्चना स्वामी जगबंधु को जामिन खारज सेपटे जामिन पर जिला दोरा जज को कोर्ट में आवेदन कले अर्चना पद्मपुर चली घमासान प्रचार लगातार तृतीय दिन में बीजेपी माराथन प्रचार करेंगे धर्मेन्द्र सेपटे वर्षा राणी घर को घर बुली भोट मागुंट बीजेडी हेवी वेट कांग्रेस प्रार्थी सत्यभूषण साहू भी चलाई माराथन कैंपेन आज ई मुद्रार खाउटी व्यवहार भुवनेश्वर समेत देशर 4 प्रमुख सहर में व्यवहारिक प्रचलन सेवा जोगाइबे 8टी बैंक टंका कॉइन मूल्य भली जारी हेब ई मुद्रा वालेट रे करी हेब कारोबार यूक्रेन विरोध में पुणी युद्ध को जोरदार करिब रूसिया प्रतिरक्षा मंत्री को युद्ध रे नेक्स्ट जनरेशन वेपन व्यवहार पाई पुतिन को निर्देश अमोघ अस्त्र व्यवहार पाई पुतिन को निर्देश बढ़ाइला चिंता नमस्कार बुलेटिन को स्वागत गुजरात रे आरंभ होईची प्रथम पर्याय भोटिंग गुरुत्वपूर्ण 89टी आसन रे हेउची मतदान जेउठी गत निर्वाचन रे बीजेपी रो पल्ला भारी थिला हेले एथर बदलिछि समीकरण हेउची त्रिमुखी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस सहित जोड़ी होई जाईछि आप बीजेपी कांग्रेस मध्य रे फाइट हेउची तेबे एथर गड़ बजाय रखि पारिबो कि बीजेपी ना चकमा देबो आप किंबा पुणी थरे ट्रैक को फेरिबो कि कांग्रेस ए तमाम विषय को नहीं आज आलोचना गुजरात लड़ाई जो प्रथम पर्याय मतदान आरंभ हो जाए गुजरात विधानसभा निर्वाचन एवं जो मतदान रे आज गुरुत्वपूर्ण रहुची 89टी आसन जो मतदान चली जो 89टी आसन रे देखिबा जदी बीजेपी रो पल्ला भारी थिला एवं बदली जाउची एथर समीकरण एथि कारण गोटे पटे बीजेपी कांग्रेस भितर लड़ाई होतिला किंतु एथर एंट्री करिछि आप ता माने कहि परिबा त्रिमुखी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस एवं आप मध्य रे हेउची एवं एथर प्रश्न आसुची गड़ बजाय रखि पारिबो कि बीजेपी कारण बीजेपी रो पल्ला सेठारे भारी थिला ना जो आप एंट्री करिछि आप समस्त को चकमा देबो ना ट्रैक को पुणी थरे फेरिबो कांग्रेस कारण ए जदी देखिबा यार प्रचार देखिबा जो विधानसभा निर्वाचन चली एवं जो निर्वाचन आज सकाळ आरंभ होईछि मतदान चली जो भली भाबरे प्रचार होईछि जो चेंजेस आसीबा कथा संभावना कह जाउछि जो फैक्टर सब रहउछि इशू फैक्टर होछि जो समस्या रहउछि स्थानीय लोक मानकर से समस्या को भित्ति करी वोटर
मतदान करेंगे ना जो चिराचरित ढंग से मतदान प्रक्रिया चली था से सब बर्तमान चली तमाम चित्र को नहीं आम आज आलोचना करुचे। तेणु जो 89 आसन कथा कहूचे जो 88 आसन रे प्रार्थी देछि आम आदमी पार्टी एवं बीजेपी कांग्रेस समस्त 89 आसन रे लड़ुछंती। त्रिमुखी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस एवं आप एथर जोड़ी होईछि जेतु त्रिमुखी लड़ाई चली एवं प्रथम पर्यायर जो 89 आसन रे मतदान चली सेठी बीजेपी कांग्रेस समस्त 89 आसन रे मतदान करिसंती आसन रे लड़ुछंती। 88 आसन रे आम आदमी पार्टी एथर प्रार्थी देछि एवं मैदान रे 339 जन स्वाधीन प्रार्थी अछंती। 788 प्रार्थी भितर 70 जन महिला प्रार्थी अछंती। अधिक आलोचना करने आम सहित न्यूज रूम जोड़ी होती मोर सहयोगी विक्रम केशरी परिजा और सेपटे वरिष्ठ सांबादिक रवि दास आम सहित अच्छा आपण स्वागत करुच्चे आज आलोचना को। प्रथम श्रीजुक्त दास आपण को पचारि बर्तमान जो गुजरात निर्वाचन आम आलोचना करुचे आपण को कौन लगुच एथर किभली फाइट चली? देखु गुजरात एकमात्र कथा हूँ बीजेपी दल 27 वर्ष है क्षमता अच्छी गोटे दल क्रमागत भाव 27 वर्ष क्षमता बोधे पश्चिम बंग परी हूँ द्वितीय क्रमागत भाव 27 वर्ष क्षमता रेकर्ड करी एथर मैंडेट पाइबे सपक्ष बार मन समान अच्छी कहीं 2002 जो होता गुजरात दंगा पर ठारू नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री थे जो प्रकार स्थिति होती बीजेपी क्रमागत भाव में जनसमर्थन आसूची किंतु गत निर्वाचन आम 2017 देखिए आप प्रथम थर पर बीजेपी गोटे आसीगला टे धक्का पाइला 99 को आसन चली आसला कांग्रेस संख्या टे बढ़ीगला किंतु एथर आउ गोटे पर्याय हो निर्वाचन रे कांग्रेस जब गत निर्वाचन लड़ुला एथर से बजार लड़ी भावुना जो कांग्रेस सबुठी प्रार्थी देती किंतु कांग्रेस जो मान को कांग्रेस मुख्य बोली लोक मैंने जानते जोटा गांधी परिवार कहुची से राहुल गांधी हूँ सोनिया गांधी हूँ प्रियंका गांधी हूँ राहुल गांधी केवल 2टा सभा करसी ना अपर पक्ष एथर तो तृतीय पक्ष प्रथम थर गुजरात रे तृतीय दल बाहर आसी आम आदमी पार्टी एवं आम आदमी पार्टी जोरसोर निर्वाचन प्रचार कर एंटी इनकम्बांस फायदा नापी एवं निर्दिष्ट भाव में प्रतिश्रुति दे इलेक्ट्रिसिटी हो पानी हो शिक्षा स्वास्थ्य कथा कहीकि सी आसी तो से जदि ये बीजेपी एडभांटेज हो नेता नरेंद्र मोदी जे देश प्रधानमंत्री अच्छा से गुजरात लोक यदि देश जो स्वराष्ट्र मंत्री अच्छे से गुजरात लोक तेणु एमान प्रति पूरा स्वतंत्र भाव में गुजरात रे गोटे अस्मितार कथा अच्छी सेटा नौचन जोटि प्रधानमंत्री मन देखी निर्वाचन प्रचार मानक प्रार्थी किए चिंता करनी तबे कमल भोट दियो सी मो पाक आसो तार सी सीधा सड़क लोक गुजरात लोक ये जो भोट तुम दौच सी नरेंद्र मोदी की भोट दियो एवं यही कथा ये नाचुराली नरेंद्र मोदी कथा आसी निश्चय गुजरातवासी निश्चित अस्मितार नरेंद्र मोदी जेतु देश प्रधानमंत्री विश्वर जड़े बड़ नेता तेणु से हिसाब से अस्मिता फिल्म जो विधानसभा निर्वाचन हेले से अस्मिता कथा रोता दृष्टि आंटी इनकम्बांसी सी बहुत बड़े प्रतिहत कर दौर जो आंटी इनकम्बांसी 27 वर्ष शासन होता आंटी इनकम्बांसी डेभलप कर सत्वे आम आदमी पार्टी जो प्रचार कर श्रीजुक्त दास आप आम सहित था आम अधिक आलोचना भी जारी रखा भितर विक्रम जोड़ी होती विक्रम जदि आंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कथा कहूचे एवं सौराष्ट्र कच्छ जदि कहूचे जो बर्तमान मतदान चली 89 आसन रे 54 आसन गुरुत्वपूर्ण जदि आम तार चित्र देखुचे किभली स्थिति सेठारे रही जो प्रचार इंपैक्ट केते दूर पड़िबो ता उपरे देखंतु इंपैक्ट जहाँ रही जो प्रचार रही ये प्रचार प्रभाव बहुत पड़ो जहाँ कहते श्रीजुक्त दास ये लड़ई बीजेपी आप आ कांग्रेस भितर नुहे ये लड़ई होची सीधा सड़क मोदी केजरीवाल आ राहुल गांधी भितर तेणुक जो कथा श्रीजुक्त दास कहले जे लड़ई ये हूँ आंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कि जोटा रोची कि भाव में प्रतिहत करेंगे से सब कथा नुहे जहाँ आप स्ट्राटेजी देखिए कांग्रेस स्ट्राटेजी देखिए से सीधा सड़क फ्री
एसएमईज ऊपर ध्यान दउछंती एवं सीधा सड़क गैस रो दर कमाइबा सीधा सड़क कृषि ऋण छाड़ करबा ए सब कथा को आज मध्ये ट्वीट करके जणाइछंती। अपर पक्षरे बीजेपी रो कथा जदि आमे कहबा बीजेपी कहउची आमे जहा विकास रो कार्य करछु से विकास रो कार्य आधार रे हमको भोट दियंतु। तेणु गोटे कथा एठी स्पष्ट जे एठी लड़ाई होउची गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल। आप देखिबा को चाहूची जे दिल्ली रे एई भली काम होइची शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति होइची स्वास्थ्य क्षेत्र रे एई उन्नति निया कराइची एवं एई पदक्षेप निया जाइची जा पर दिल्ली रो मॉडल रो सक्सेस रूपायन हला पंजाब रे होइची किंतु सेही कथा समान आउथर सुजोग दिया जाउ गुजरात रे किंतु दिल्ली बीजेपी कहउची जे गुजरात रे आमे गत 25 वर्ष धरि 27 वर्ष धरि आमे जहा करि आछू ता आपण मानको आखि आगर अछि एवं एई निर्वाचन रो पूर्व कथा जदि आमे कहबा गत 3 मास धरिकरी बा 4 मास धरिकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं तांको कैबिनेट कलिग माने एमाने बारंबार लगातार प्रति सप्ताह 2-3 जण गुजरात गस्त करचंती केवल गस्त करनांती गुजरात पई अनेक प्रकार योजना को मध्ये घोषणा करचंती ये सबुर प्रभाव निश्चय लोकमान को ऊपर पड़िबो तबे या केते परिमाण रे वोट रे काहा को कन्वर्ट करिवो ताहा आजिरो वोट बा आसंता जो 5 तारिख रो वोट हबो ता पर ही जना पड़िबो। निश्चित भाव विक्रम आम से दिगरे मध्ये आलोचना आगो को बढ़ेबा किंतु गुजरात रु जोड़ी होइचंती हमरो प्रतिनिधि रचना उपाध्याय तांको सहित अधिक आलोचना करबा। रचना अभी तक जो जानकारी आया है कितना प्रतिशत मतदान हुआ है क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस बार? देखिए 12 बज रहे हैं और गुजरात में पहले चरण का मतदान आज होना है और मतदान आज होना है और इस वक्त मैं तलाला के एक स्कूल के बाहर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको न्यूज 18 के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर वोटिंग चल रही है और लोग अपने घर से वोट जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी कि अपने मतदान के लिए अपने घरों से बाहर जाए मतदान का प्रयोग करें क्योंकि किसी भी राज्य की सरकार बनाने के पीछे या देश की सरकार बनाने के पीछे जनता का सबसे बड़ा हाथ होता है। जनता यानी कि ये एक तरीके से लोकतंत्र का पर्व है और चुनाव में जिस तरीके से जो वोट होता है वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है और एक वोट से ही एक प्रत्याशी की किस्मत तय की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिस जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ पहले ये जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में थी और कांग्रेस के ही भगवान बराड़ जो है वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वो इस बार बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर प्रबल दावेदारी कर रही है। बीजेपी भी अपनी जीत की दावेदारी कर रही है। 8 तारीख को इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा और आज जनता अपने मत के माध्यम से ये तय करेगी कि आने वाले समय में कौन से प्रत्याशी होंगे, किसको वो चुनकर अपने प्रदेश में लेकर आएंगे, अपने क्षेत्र में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर लोग घरों से पहुंच रहे हैं। महिलाओं की भी उतनी ही संख्या यहाँ देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इस वाले केंद्र पर अगर आप देखें तो जी एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, देखिए वोट परसेंटेज जो है वो बड़े मायने रखते हैं इस टाइप के इलेक्शंस में जहां पर ट्रायंगुलर फाइट होता है। तो यहां पर अभी जो आप देख रहे हैं अभी लोगों को कितना ताता है, कितने लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं, वो परसेंटेज कितना तक बढ़ सकता है पिछले के मुकाबले में? अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अगर मैं सिर्फ इसी क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर 20 से 25% वोट जो है वो पड़ चुका है क्योंकि अभी 12 बजे हैं और वोट शाम तक पड़ेगा। 5 साढ़े 5 बजे का जो समय रहता है तो लोग कई बार क्या होता है कि सुबह सुबह वोट के लिए पहुंचते हैं और कई बार ऐसे होता है कि अपना सारा काम खत्म करने के बाद, खासकर जो महिलाएं हैं वो अपने घर का काम खत्म करने के बाद पहुंचती हैं। लेकिन हमने कई जगहों पर ऐसा देखा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी संख्या में देखने के लिए मिला। प्रतिशत जो था वो लोगों का वहां पर ज्यादा पहुंच रहे थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 20 से 25% इस अगर हम क्षेत्र की बात करें, इस पोलिंग बूथ की बात करें तो यहाँ पर इतना ही देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, वोटर्स की संख्या यहाँ पर ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। हालांकि यहाँ पर भी अभी काफी सारे वोटर्स हैं और आप देख भी सकते हैं कि चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग हो, वो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, क्योंकि अपनी एक ड्यूटी होती है वोट देना, उसको करने के लिए अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। और आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो वोट है वो डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं भगवान भाई बराड़ वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और उनका कहना है कि इस बार गुजरात में जो लोग वोट देकर निकल रहे हैं उनसे कुछ उनका कुछ रिएक्शन हमको मिल सकता है क्या? जो लोग वोट देकर निकल रहे हैं या फिर जो लोग खड़े हुए हैं लाइन में, उनका कुछ रिएक्शन हमको मिल सकता है क्या?
देखिए जो लोग खड़े हुए हैं वहां अंदर जाना मीडिया के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे तो हम बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप बताइए, आप डाल के आई हैं वोट? हाँ। और क्या लग रहा है आपको कि किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा सरकार बनेगी। होगा। अच्छा, आपको ऐसा, आप यंग वोटर है, क्या सोच के, क्या मन में था कि मैं इस पार्टी को दूंगी या इसको दूंगी, क्या मतलब क्या चाहती हैं आप, क्या मांगे आपकी? आपको जैसे लगे वैसे हम करें। मतलब आप उसको भी जिताना चाहती हैं जो विकास करे? हाँ, विकास जो करे इन्हें जिताएंगे। अच्छा लग रहा है आपको वोट करके आई आप? हाँ, अच्छा लग रहा है। आसानी से लोग जा पा रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पर यंग वोटर हैं जिनका कहना है कि वो सिर्फ ऐसे प्रत्याशी को वोट करना चाहते हैं जो उनके क्षेत्र का, उनके प्रदेश का विकास करे। आप बताएं भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं? बीजेपी आएगी, विकास को मत दिया है हम। बिल्कुल, आप कह रहे बीजेपी आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि वो बहुत अच्छा कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारी कर रही है। यहाँ हम बीजेपी को ही चाहते हैं, आम आदमी को कुछ है ही नहीं। क्योंकि मुफ्त की चीज लेना हम गुजरातियों का नो अलाउड है, हम मुफ्त कुछ लेते ही नहीं। तो हम विकास को जानते हैं। आपने सुना कि यहाँ पर विकास के नाम पर वोट जा रहा है और सीधे सिरे से ये कह रहे हैं कि मुफ्त की चीजें रचना लेना चाहते। जानना चाहूंगी आपसे, ये जो विकास की बात कर रहे हैं सब लोग या फिर जो लोग मत दे के वोटर्स जो लौट रहे हैं उन लोगों का क्या कहना है कि ठीक है जो भी सरकार आए? मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बार जो तमाम प्रचार आपने देखा, जिस हिसाब से तीनों दल, हम आपकी बात करें, कांग्रेस या फिर बीजेपी की बात करें, जो मुद्दा है, जो लोकल एरिया की मुद्दा है, वो कितना मायने रखता है इस बार चेंजेस लाने के लिए? देखिए, अगर हम लोकल मुद्दों की बात करें और इस बार चेंज की बात करें तो जहां मैं खड़ी हुई हूं ये कांग्रेस की सीट हुआ करती थी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि अब बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो ये सीधी सीधी बात यह है कि यहाँ पर जो चुनाव लड़ा गया है वो लोकल मुद्दों पर लड़ा गया है, क्योंकि जो लोगों की, यहाँ पे स्थानीय लोगों की जो जरूरतें हैं, स्थानीय लोगों की जो मांगे हैं, उनको पूरा करने का वादा कहीं ना कहीं से तमाम जो पार्टीज हैं उनकी तरफ से किया गया है। और आम आदमी पार्टी की तरफ की बात करें तो आम आदमी पार्टी हमेशा से ही ये कहती रही है कि हम जिस तरीके से हमने दिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया है वही हम दिल्ली मॉडल जो है उसके साथ गुजरात में हम मॉडल दिखाना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज यहाँ दिखाना चाहूंगी, जहां पर हम खड़े हैं ये आदर्श गांव है और आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से ही देख सकते हैं कि किस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पर की हुआ है। तो लोग ये जाहिर सी बात चाहते हैं कि जहां विकास हो, जहां डेवलपमेंट हो, ऐसी ही सरकार को वो लेकर आए और इसी के लिए वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक आदर्श गांव का नजारा है जहां पर पूरी तरीके से लोगों को, जो लोकल लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको किस तरीके की सुविधाएं हो वो उनको ध्यान में रखते हुए इसका डेवलपमेंट किया गया है। तो अब जो लोग हैं वो ऐसे और भी जगहों का डेवलपमेंट चाहते हैं और इसी के लिए वो अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और महिलाओं की भी संख्या यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि किसी भी सरकार को बनाने के लिए, किसी को भी जिताने के लिए आधी आबादी का महत्वपूर्ण योगदान होता है और वही योगदान निभाने के लिए महिलाएं भी अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, पुरुष भी घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि अभी प्रतिशत थोड़ा सा स्लो जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे वोटर्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी और यंग वोटर्स भी घरों से बाहर आएंगे। रचना, हम बाद में भी आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे और लोगों की रिएक्शन आगे जाके भी आपसे लेंगे। अभी मैं आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी। सीधासळख आसंतु जीवा गुजरात निर्वाचन फलाफल रोमांचित हेबा परि मने हेउछि, किंतु बीजेपी व्यतीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस निर्वाचन प्रचार संपूर्ण शक्ति लगाइछंती। आज प्रथम पर्याय वोटिंग चली फलाफल को नहीं अरविंद केजरीवाल गोटे पर गोटे भविष्यवाणी करिसेंती। आमे जो देखिबा पूर्वरु पंजाब कथा कहतु, दिल्ली कथा कहतु, जे भली भाबरे केजरीवाल भविष्यवाणी करथिले गोटे पर गोटे भविष्यवाणी सत होईची। एठी मध्ये गुजरात रे आम आदमी पार्टी सरकार करिवो बोली से भविष्यवाणी करिसेंती आ तांकर तीन प्रार्थी विपुल भोट रे जीतिबे बोली से भविष्यवाणी करिसेंती। आसंतु सुनिबा से कोन कहउछंती। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा।
तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। आलोचना करबा आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक रवि दास श्रीजुक्त दास आम गुजरात चित्र देखुले जो सब चली मतदान और जदियो बर्तमान 20-25% मतदान होती किंतु अनेक स्थान में भल मतदान भी होती किंतु आप देखो अरविंद केजरीवाल जो भविष्यवाणी कर भविष्यवाणी जो देखा पंजाब कथा कहतु दिल्ली कथा कहतु सत होती तो लगुच कि गुजरात को नहीं भविष्यवाणी सत हो पारे ना गुजरातवासी जहाँ चिंता कर आधार कर देखा स्थिति सब भविष्यवाणी कौन सत होती भविष्यवाणी गुआर सत है ना उत्तराखंड सत हो गला ता नुहे ठीक कथा पंजाब में कही सी बड़ मास्टर से कहबार नहीं कि देखो सी आप प्रतिनिधि जहाँ कहते सहीटा ही गुरुत्वपूर्ण आप प्रतिनिधि से कहते जो लोक मैंने भोट दान क्षेत्र को आसुच्च भोट दौरान से स्थानीय मुद्दाटा गुरुत्वपूर्ण लोकल इश्यू आप देखते आप प्रतिनिधि स्पष्ट भाव कहते मुझे कहली एंटी इनकम कथा हूँ लोकल मुद्दा इतने आसूची जी भल प्रार्थी जदियो बीजेपी जो दौरान निश्चित भाव में प्रधानमंत्री मोदी को आखि आगे देखुं अमित शाह को देखुं जी भी होना कैंडिडेट किंतु किसी लोक जे मुद्दा देवे से किसी ना किसी तो निज प्रार्थी को देखिए ना आम आदमी पार्टी चांसेस आसीबो। श्रीजुक्त दास मु गोटे कथा केवल कहवाई चाहूँगी आम जब 2017 जो गणित अच्छी से गणित को नजर पकेबा ये 89 आसन भितर बीजेपी जीति 48 टी आसन आ कांग्रेस जीति 40 टी आसन आ गोटे आसन स्वाधीन प्रार्थी जीति अर्थात ये कांग्रेस भल फाइट देता बीजेपी को एवं केवल से नुहे जो सौराष्ट्र और कच्छ अंचल जो 54 आसन रही से भितर 23 टी जीति बीजेपी आ कांग्रेस को मिलता 30 आसन अर्थात कांग्रेस आगे रही ये जो सौराष्ट्र और कच्छ अंचल जो कि आज इलेक्शन होची आज जो भोट पड़ुची किंतु एथर जदि आमे देखिबा गत थर कांग्रेस रो कैंपेनिंग स्टाइल जो देखिबा आमे बहुत एग्रेसिव थिला एवं कांग्रेस तार फलाफल भी पाइथिला एथर किंतु कांग्रेस रो जो कैंपेनिंग स्टाइल शैली आमे देखिले किंतु कांग्रेस सेति के एग्रेसिव नाही तेनु ए जो परसेंटेज ऑफ वोट ये कांग्रेस रो शिफ्ट होबो आपको ना बीजेपी रो शिफ्ट होबो आपको जदि कांग्रेस रो शिफ्ट हुए आपको ताहले हुए तो बीजेपी रक्षा पाई जाई पारे किंतु जदि बीजेपी रो वोट शिफ्ट हो चुके आपको ताहले तो गणित पूरा एपट सेपट हो आपन कोन भाबुछंती मु तो भावुची एक ट्रांगुलर कॉन्टेस्ट से निश्चित भाव में एडवांटेज टू बीजेपी नो डाउट किंतु आम आदमी पार्टी जे केवल कांग्रेस रो वोट काटिबो ए कथा नुहे मु जा शंकर सिंह वागेला जहाँ कहते मु तांका सहित एकमत ये दुई पट काटुची ये जो भोट पाइबो एई पार से कांग्रेस वोट बेसी पाई पारे बीजेपी वोट मत नब कारण से जो कहले करत भलिया ये आगु जीव पछुक आसे उभय करू काटिबो जो शंकर सिंह बागेला जो उपाख्यान दे कहते मु मन ताको पूर्ण समर्थन करू शंकर सिंह बागेला होचंती प्रधानमंत्री मोदी एकदम घनिष्ठ सहयोगी अतीत में 2 जन ग्रासरूट लेवल काम करके गोटे दल में उठिचंती परवर्ती समय ये कांग्रेस को जाइछंती तेणु से भल भाव हुए आंकर रणनीति जानि थाई पारंती तेबे याकू बीजेपी ग्रहण करिछि तो एटा बीजेपी पई संकेत नथला तो तांकर नहीं उभय से कहले उभय पई मोर कहलो जे उभयर वोट से काटिबो केना आम आदमी पार्टी आसो के आपण सेठी आमे आज पण से देखिजे गुजरात रे पोलराइज वोट दी पार्टी पूरा तृतीय पार्टी आसुछि माने से का वोट लो को वोट लो जो ने विरोधी थिले तांको वोट लो बेसी किंतु सपत वोट बदल लो जो मैंने कहली एंटी इनकम से लोकल इश्यू नहीं ये जो प्रमिश से करुँच गाना इलेक्ट्रिसिटी देदेवे अमुक करदे स्कूल सुविधा देदेवे यही जो कथा से कहते लोकल इश्यू रे किसी लोक गोटे कथा मो मन को आसुची जे जदि माने एंटी इनकमबेंसी फैक्टर रही ताले फ्रीबीज रो माने जो भंडार कहीं माने प्रतिश्रुति बारंबार दोचंती आज जो राहुल गांधी जहाँ भी ट्वीट करचंती से ट्वीट रही जे गैस रो दर को मने पकाई आपण माने वोट दियंतु सेमती आम आदमी पार्टी मध्य से फ्रीबीज इलेक्ट्रिसिटी कथा कहिछि तो माने फ्रीबीज ऊपर कहीं माने बेसी जोर दोचंती आ उपाय नहीं ना माने जेहेतु बेकारी आ दर बुद्धि ये तो मुख्य मुद्दा बाहर से नौचंदी ना दर बुद्धि गोटे नतीजा है गोटे कथा आज जो भोट होची
सेठी बहुत बड़ बड़ प्रार्थी जो मैंने अच्छा भितर रही आप्र मुख्यमंत्री फेस ईशुदान गाढ़वी खंबालिया लड़ुंट आप्र राज्य सभापति गोपाल इटालिया रोच सी लड़ुंट बीजेपी जदि आम बड़ प्रार्थी कहवा जामनगर नॉर्थ रु लड़ुंट रिभाबा जाडेजा तो ये जो आप्र दुई जन जाक प्रमुख चेहरा से इलेक्शन प्रथम हो जाऊँगी की प्रकार संदेश दौर अर्थात गोटे प्रकार भोटिंग शैली को देखी बीजेपी कौन परवर्ती रणनीति कर कि एक्जाक्टली इथे आज कौन होची जहाँ कहले गला थर बीजेपी के जो धक्का होता आप देखिए कांग्रेस 77 आसन को चली गला धक्का यही अंचल रही आप कहले स्वराष्ट्र पछु तेणु यहीटा पर बीजेपी तार जानी पड़ो आज भोट पर जानी कौड़ को जाऊँ अच्छी ना आज्ञा हाथ तो मात्र दुई दिन थी तो दुई दिन में बहुत किसी एपट सेपट हो भावुं कि निश्चित भाव आज तो निजे मोदी जिते देखो रोड शो कर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड शो इन अहमदाबाद 50 किलोमीटर आपन कौन कहते आज जो भोटिंग पैटर्न रही जहां आम प्रतिनिधि सेठिकार ग्राउंड रू जहां रिपोर्ट दौले जे भोटिंग परसेंटेज मध्याह्न सुधा बर्तमान से देखा मिलूनी आम अतीत देखीचे जो भोटिंग अधिक रही एवरेज हार ठारू अधिक रही बीजेपी भल प्रदर्शन कर बर्तमान आम देखा पाचे जे भोटिंग हार से नाही तेणु ये गोटे माने बीजेपी आप एटा गोटे किसी अलग प्रकार संदेश दब कि नहीं देखो भोटिंग हार जो साधारणतः आम कहूँ जो भोटिंग हार अधिक है आंटी इनकम थाए भोटिंग हार अधिक हुए किंतु भोटिंग हार कमुची माने उभय पटे अच्छी बीजेपी बहुत रिबेल कैंडिडेट बीजेपी बहुत नेता संतुष्ट ना आप जानते लोक विषय माने आग्रह प्रकाश कर बीजेपी से आग्रह प्रकाश कर दाबी हो पारे कारण बीजेपी बहुत नेता इधर असंतुष्ट अच्छा रिबेल भी आप देखिए ये जो प्रथम पर्यायर भोटिंग पर जदि बीजेपी तार रणनीति जमती बदल पारे हुए तो जदि जदि रहिला सेमती किछि आप और कांग्रेस भी निजर बदलैबे रणनीति सेमाने मध्ये अधिक एग्रेसिव हेबे सेमाने मध्ये अधिक किछि नुवा लोकन को प्रभावित करिया पे किछि भी सामना को आनी पारते सेमाने कथा एक्जेक्टली आजिर भोट पर सब दल शेष पर्याय पाई 5 तारीख पाई ये जो 2 दिन समय रहिबो से किछि न किछि रणकौशल बदलिबे ना कहीं हिसाब है मु आश्चर्य हेबिनी किछि लोक किछि नेता जो समसाथी संपर्क अच्छी बड़ नेता सी विभिन्न विषय निगोसिएट कर दियंती कैंडिडेट स्तर में निगोसिएट कर दियंती किए कोठी जितुची थर्ड पार्टी कोठी का काटिबो ए सब काम हुए हो चारियाडे सेठी बंद कर अनेक लोक तो हिसाब किताब हम से अनुसार अनेक 5-2% भोट एकर सर हो जाए निश्चय करा जाए सब निर्वाचन करे हम कहीं ट्रांगुलर कथा आसी तो प्रथम पर्याय देखला पर से जानी ने आज्ञा तो कौन हेबो श्रीजुक्त दास आगामी पर्याय अबा कहि परिबे प्रथम पर्याय वोट मतदान परे तो सब दल रणनीति चेंज करि पारंती अबा कौन रहउची ता परा जणा पड़िबो धन्यवाद आपनकर तमाम प्रतिक्रिया पाई वरिष्ठ सांबादिक रविदास थिले हम सहित धन्यवाद विक्रम आपनको मध्ये तमाम आलोचना करितिबारो हम सहित न्यूज रूम रो विक्रम केसरी परिजा मध्ये जोड़ी होइतले अन्य खबर ऊपर नजर पकेबा गोटे छोटिया ब्रेक समय उपनिर्वाचन कंपुछि पद्मपुर मैदान एथर लड़ाई अभिज्ञ बनाम युव नेतृत्व प्रसंग पलटिछि चाषी बुणाकार समस्या जिला मान्यता को नहीं भी लगी छक्का पंजा एथर नो रिस्क शासक दल सम्मान प्रश्न बड़ रणनीति सह बाजीबात बीजेपी तैयार शेष लड़ई रे शक्ति देखाइबो हाथ भोट देव पद्मपुर ग्राउंड जीरो रु दमदार कवरेज न्यूज 18 ओडिया रे न्यूज फ्लैश प्रेजेंटेड बाय सफेद डिटर्जेंट पाउडर More choice, more safed, more safed. शिक्षकों आंदोलन स्थगित आंदोलन ओहरिला
प्राथमिक शिक्षक संघ हेले एथिपाई राज्य सरकार को डिसेम्बर 20 तारिख पर्यंत मोहलत देछि संघ। 3 दफा दाबी पूरण नहले पुणी डिसेम्बर 21 तारिख जोरदार आंदोलन कराजिबो बोली कहिछि शिक्षक संघ। 3 दफा दाबी नहीं गत रविवार विधानसभा आगरे हजार हजार शिक्षक आंदोलन चलाइथिले। आंदोलनकारी शिक्षकों सह राज्य सरकार 3-3टी बैठक फेल मारिथिला। दाबी पूरण पाई मोहलत मागिथिले सरकार। आउ शिक्षक संघ सरकार को मोहलत देबा सह आंदोलन को स्थगित रखिछि। जिद्रे अटल आईनजीवी मानिलेनी सर्वोच्च अदालत निर्देश। हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी रे संबलपुर रे जोरदार आंदोलन करछन्ती वकील। आंदोलन बेले पुलिस एवं वकीलों मध्य होइछि प्रबल धस्ताधस्ती। व्यापक फोर्स एवं अधिकारी उपस्थित सत्वे रास्तारू आंदोलनकारी को हटाई पारलेनी पुलिस। कोर्ट को जाई पारलेनी विचारपति। वकीलों आंदोलन ब्रेक पर स्वागत। मेक इन ओडिशा कनक्लेव आज होउछि द्वितीय दिन एवं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज 2022 वर्षर शिल्पनीति घोषणा करिवे। किछि दिन तळे एहा कैबिनेट रे अनुमोदन मिलिथिला। मेगा व्यवसाय सम्मेलन रे 20 रु अधिक एमओयू स्वाक्षरित हेबार कार्यक्रम रहिछि। 2000 रु अधिक शिल्पपति एथिरे भाग नैछन्ति। एबे इंडस्ट्री लीडर प्लेनारी सेशन चलेछि। आ ए अधिवेशन रे लक्ष्मी मित्तल, करण अदानी, सज्जन जिंदल, नवीन जिंदल, अनिल अग्रवाल को भली प्रमुख शिल्प नेतृवृंद जोग दैछन्ति। अपराह्न शिल्प और निर्माण को आर्थिक प्रोत्साहन शीर्षक आलोचना चक्र अनुष्ठित हेब। 5 नंबर सेमिनार हॉल रे कार्यक्रम हेब। एथिरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अध्यक्ष एसएस मुद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो गुलशन मलिक, एसआईडीबीआई रो अध्यक्ष एस रमन जोग देबे। Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome the man who is parsimonious with his words and lets his actions speak louder for itself. Our Honorable Chief Minister, Shri Naveen Patnaik. It was his idea in the year 2016 which has germinated in such a magnum opus named Make in Odisha, and this is the 3rd edition. Goes back to over 100 years, even before the state of Odisha as it exists today was there. With significant investments by multiple Tata companies, including Tata Steel, Tata Power, TCS, Tata Consumer Products, Indian Hotels, and many others, the Tata Group employs over 50,000 people already in the state of Odisha directly, and another 50,000 people indirectly. The Tata Group of companies, and more specifically Tata Steel, has invested over 75,000 crores in the last 5 years, most of it since the last summit that we had, and we will continue to invest to grow in the state of Odisha for multiple reasons. We've seen that, as many of my colleagues from the industry have mentioned, that this is one of the easiest and most business-friendly states to operate in. It has a political stability, it has a business orientation, it has got very agile decision-making, an empowered group of bureaucrats, and a lot that one dreams for in many other states. Over the last few years, Tata Steel has not just built the Kalinganagar steel plant, which it continues to expand, but has also invested in acquiring the erstwhile Bhushan steel plant, as well as an Nilachal Ispat more recently. Today, we are already producing about 9 million tons of steel in Odisha, which makes us the largest steel producer in Odisha, and we plan to double this over the next few years as we expand in all our locations that we have in Odisha. We as a group and as Tata Steel have also continued to work with the communities in the state of Odisha in multiple areas, whether it's health, whether it's education, and of course whether it's sports, and more specifically in the field of hockey. Again, all this has been possible because of the support that we've received from the Honorable Chief Minister and the government of Odisha over the years. It is no surprise to us that Odisha is one of the fastest industrializing states in India, with an industry growth rate higher than the national industrial growth rate, and an industry share of the state GDP which is higher than the national share of industry in the GDP of the country. Odisha has also been successful in creating an investment climate that is attracting investments in multiple sectors and from multiple companies from India and overseas. Odisha has successfully demonstrated how you can convert the wealth which lies below the ground
to jobs, economic development and prosperity above the ground. Odisha accounts for 1/4 of the steel capacity of the country today, and the share is expected to increase to 1/3 of the steel capacity during this decade. This is a great opportunity for the state of Odisha because the state of Odisha has a potential during this decade to produce as much steel as what India is producing today. And the state of Odisha is blessed with a coastline in addition to mineral wealth. Today there are countries in the world which import iron ore and export steel, and that's about 150 million tons of steel exports going from countries which import iron ore. Odisha alone has the potential to convert that iron ore into steel and occupy the space that can be vacated by these countries. As the steel industry in general and Tata Steel in particular plan these expansions, a few areas where I think the government needs to focus on. I know we've got a lot of help in these areas, but obviously as we plan our expansion, we want the government also to keep pace with our plans. And I think one area, as was mentioned by Mr. Sajan Jindal earlier, is infrastructure, because any steel plant means movement of 3 to 4 times the material that you're producing, and that means the rail infrastructure, the port infrastructure, the road infrastructure, all that needs to be upgraded much more than it is today to keep up with the pace of steel investments that's happening. Secondly, the provision of adequate power and more importantly, the infrastructure to support that. Raw material security through sustainable policies supporting sustainable mining, facilitation of installing of slurry pipelines because that helps in moving the raw materials that's required to the steel plants, and also obviously making sure, as we've always had, the support that is required to move fast on these investments. Once again, a great privilege for us as a group, for us as Tata Steel, to be associated with the state of Odisha, and I wish this investment summit all the very best. I'm sure if the past is any indication to go by, the future looks bright. Thank you very much. Thank you, Mr. Narendran, for your warm address. Ladies and gentlemen, we have amongst us the Gen Next from the Jindal family, Shri Abhuday Jindal, the scion of JSPL, and I request Shri Abhuday Jindal to request Honorable Chief Minister and jointly lay the foundation stone of Jindal Stainless Steel Park. Thank you, Honorable Chief Minister. As the saying goes, the proof of the pudding lies in eating, and as a culmination of the Herculean efforts put together during the 9 road shows across the country, we have the pudding to eat it too. Ladies and gentlemen, we will have the MOU exchange ceremony for the various proposals received today. May I request the officials to kindly escort the MOU holders to the designated areas, and requesting Shri Hemant Sharma, Principal Secretary Industries, to join the delegation of MOU holders. Requesting the MOU holders to please join in with Principal Secretary Industries for a photo op. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for the MOU exchange ceremony for the various proposals received for Make in Odisha 2022.
representatives of the companies with their various proposals which they have submitted to the government of Odisha and as part of the MOU exchange. Requesting all those representatives who have already taken the photograph to please go back to the respective seats, and requesting the next batch of MOU holders to kindly join Shri Hemant Sharma on the desk for the next photo op. Thank you, Shri Sharma. A household name, the metal to infrastructure behemoth Adani Group is heavily invested in our state. From Dhamra port to iron beneficiation has already drawn his interests. The Adani Group is also venturing into data centers and other sectors, and I would like to invite Shri Karan Adani to kindly come here and share his thoughts with us. Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, distinguished leaders and administrators, captains of industries and my dear friends. Thank you very much for your invitation to speak at the third edition of the Make in Odisha conclave. I am honored to be here among so many of India's top industrialists. I started to come regularly to Bhubaneswar since our acquisition of Dhamra port in 2014. I was 26 then, and over the years, I have grown to love this great city and state. This is the temple city of India, known for its convergence of our country's Hindu, Buddhist and Jain cultures. This is the city that forms the holy golden triangle, along with the breathtaking beauty of the city of Puri and the city of Konark that hosts the three images of the sun god. And this is the city that today continues to transform under the leadership of its beloved leader, Shri Naveen Patnaik ji. Honorable Chief Minister, there could not be a greater reflection of the love, confidence, and the faith that the people of your state have in you than the fact that you are in your fifth term as the leader of the state of Odisha. Your empathy and social-based style of leadership are truly inspiring. The best manifestation of your style of leadership are the social schemes you are implementing, along with the strong discipline you bring to governance. Be it the Kalya Yojana or the Mission Shakti or the game-changing Biju Swasthya Kalyan Yojana health scheme that covers almost 1 crore families, or the generous dietary stipend to the sports person, or the smart classroom you have built in the most rural parts of the state. These are all game-changing initiatives for the upliftment of the society and gives everyone the confidence to aspire. Equally impressive is your 5T program that focuses on teamwork, technology, transparency, transformation, and time limit, and ensures that the performance of your officials is judged on these 5 factors. Now, allow me to outline Adani Group's plan for Odisha. Our primary interests here are in ports and logistics, industrial clusters and special economic zone, power generation, transmission and distribution, integrated natural resource management, renewable energy, data center, defense, cement and agribusiness.
We are leaders in all our core businesses, and Odisha is one of the most important states for the Adani Group. Your guidance has led us to great strides in Dhamra. According to our revised master plan, the Dhamra port will have 35 berths with a massive 315 million tons in port capacity. It is the first port in India to receive environment clearance for more than 300 million tons. We are thankful to the High Level Clearance Authority for approving our proposal to set up a 4 million ton per annum alumina refinery and a 30 million tons per annum iron ore project. Honorable Chief Minister, the alignment between progress, state development and job creation is an essential part of all the investments that we have made. I am delighted to say that our investments in the state of Odisha continues to accelerate. Over the last 5 years, Adani Group has already invested 20,000 crores as we have gone about developing LNG terminal, the Dhamra port and our mining activities. The number of direct jobs created has already touched 10,000 and indirect at 30,000. Our continuing commitment to Odisha is showcased in our planned capital investment that will exceed 60,000 crores over the next 5 years. In closing, let me say that along with our investment, we continue to expand our social activities across Odisha via the Adani Foundation. One new activity we have been very closely monitoring is the formation of Women Producers Group that works to train women from Dhamra's Gram Panchayats and teach them to be self-reliant. I believe this program will be a game changer and help augment Odisha's wide-ranging social programs. Honorable Chief Minister, it is said that in the 18th century, when the British first saw the Rath Yatra in honor of Lord Jagannath, they were so amazed that they introduced a new English word, Juggernaut, meaning unstoppable force. Today, you are the Juggernaut shaping the unstoppable future of this great state. Once again, thank you for your inspiration, guidance and support. I look forward to doing our part to help build Odisha that you continue to shape. Thank you. Jai Hind. Thank you, Shri Archana Nag, for your warm address. Ladies and gentlemen, you had just witnessed the MOU exchange photo op with Shri Hemant Sharma and the MOU holders. So I would just like to take the names of the companies who have signed the MOUs. So please do give a big round of applause after I announce their names. ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, JSW Limited, Renew Power, Avada Ventures Private Limited, Acme Clean Tech Solutions Private Limited, the Vari Energies Limited, My Home, Kalyani Steels Limited, Ocure Energy Holding Limited, Oil India Limited, SR Group, Rumta Metals Private Limited, the SMS India, Denali Chorus Refractory Solutions Private Limited, Divya Shakti India Private Limited, SLN Spinning Mills India Private Limited, the Satlaj Jal Vidyut Nigam Limited, Neyveli Lignite Corporation, NTPC, Indraprastha Gas Limited, and Aditya Birla Renewables Limited. Once again, let's have a big round of applause for the MOU holders. Carrying on, ladies and gentlemen, we have next Renew Power, which was established in 2011 and is one of India's leading renewable energy companies in terms of total energy generation capacity. Since commencing operations with a 25.2 megawatt wind project in Jasdan, Gujarat, the company has grown exponentially and has a current renewable asset of over 13 gigawatt, including projects under development and also in the pipeline. In October 2019, Renew Power became the first RE company in India and 10th globally to cross 5 gigawatts of installed capacity. In 11 years of its operation, Renew Projects has generated many jobs directly and indirectly. They're now venturing out in the field of green hydrogen, green ammonia, and have chosen Odisha to be their destination of choice. Ladies and gentlemen, we have amongst us Srimati Vaishali Nigam Sinha,
Chief Sustainability Officer, Renew Power, and may I request her to kindly address us. Honorable Chief Minister, respected Sri Naveen Patnaik ji, Honorable Ministers and senior officers of the Odisha government, leaders of the industry, ladies and gentlemen, Namaskar. On behalf of Renew Power, I'd like to thank the Honorable Chief Minister for inviting us for this momentous day in Odisha's growing status as a favoured investment destination. Renew Power, as was just stated, was set up in 2011 by Sumant. Our first project was a 25 megawatt project in Jajdan in Gujarat. This was inaugurated by our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, when he was the Chief Minister of Gujarat. So compared to all the industry captains here, we are fairly young and fairly young even in Odisha. But we are really encouraged by the experience of our colleagues here and are really looking forward to doing business in the state of Odisha. Since the time of our first project, we have grown over 500 times to reach a portfolio of 13,000 megawatts, of which 8,200 megawatts are operational. We have been pioneers in the area of green finance, and we are also the first renewable energy company which got listed on NASDAQ in the United States. Recently, we have diversified into manufacturing of green hydrogen, the clean fuel of the future to replace fossil fuels in all sectors, especially transportation, steel and fertilizers. Our partner institutions in India are IOC and L&T. At COP27, we also signed a framework agreement with the government of Egypt to set a green hydrogen plant in the Suez Economic Zone. We were one of the only companies to be invited from Asia by the Egyptian government to sign this framework agreement. We look forward to, as has just been announced, the opportunity to work in the area of green hydrogen in the state of Odisha. So thank you so much for the opportunity. At Renew, we go beyond business. For us, we do purpose-driven business, and that's the aim we have in Odisha as well. We are highly encouraged to see the inclusive development which is taking place in Odisha. We look forward to contributing towards that and inclusive growth, engaging women and children. The smart classrooms, which I've been hearing about by all the industry captains, is an area where we are looking at partnering with the government to ensure that they're not only smart, but these are green classrooms as well. So with the blessings of the Chief Minister, we look forward to our entry in the state to help the state move forward in the direction of green and clean energy. Thank you so much. Namaste and Jai Jagannath. Thank you, Ms. Nigam, for your kind address. Ladies and gentlemen, the Avada Group is India's leading integrated energy group with business interests in renewable power generation, solar module manufacturing, electrolyzer manufacturing, and green ammonia production. The Avada Energy, established in the year 2017, is a flagship company of the Avada Group and is one of the fastest growing renewable energy companies in India. The renewable energy arm has consistently been a top performer in the Indian RE space. It has commissioned a few of India's largest renewable energy projects across 11 states. At the helm of affairs is Shri Vineet Mittal, an alumnus of the Harvard Business School and a serial entrepreneur himself. We are very pleased to have him with us, and may I now request him to kindly share his thoughts with us. Shri Naveen Patnaik ji, Honorable Chief Minister, Government of Odisha, dignitaries on the dais, Shri Hemant Sharma, Secretary of Industries, Government of Odisha,
distinguished guests, friends from industry, ladies and gentlemen. It's a privilege and an honor to be among you all for the eventful Invest Odisha Conclave 2022. I grew up in Calcutta and have often been to Jagannath Puri as a kid and have fond memories of the place. It has always amazed me to see how Lord Jagannath is intimately connected to Odisha's social, culture and religious life. We are a renewable energy business and sunlight is core of our existence. Odisha is home to famous Saint Temple at Kunag, a UNESCO heritage site built in 13th century. It is a testimony to the fact that people have recognized the enormous power of sun well before others. On one hand, Odisha has large forest covers visible when you traveling through the hinterland. On the other hand, as Secretary Sir was explaining, it has large mining and other industry. The perfect blend of industrial development and preservation of nature is hard to achieve. And my congratulations to the state for such a feat in the current era where there is enormous emphasis on sustainable development. Odisha can be guiding light to many. One of the biggest positive of Odisha is its political stability. Policy consistency is an essential prerequisite for industrial growth, and Odisha has the biggest advantage on that front. Shri Naveen Patnaik ji, Honorable Chief Minister, has been at the helm of affairs for past 2 decades, and which speaks of volume of his popularity with the masses and reflection on his pro-people policies. Under ଚାଷ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପଦ୍ମପୁର ଚାଷୀବାସୀ କେ ଯଦି ଭଲ କରି କଲା ବୋଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖମୁ प्यान नहीं हबार कि किछु नहीं बोर फोर किछु नहीं हबार हमर बुढ़ाकार रे अंदा किजे हमको अंदा सहयोग नहीं पाबा କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ସେବା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀର ସେବା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କିଠୁ ବିକାଶ ଜିନିଷଟେ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଥର ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଆଶାଟେ କରୁନୁ ତ ସାର୍ ଏଇ ଆଶା କେତେ ବର୍ଷରୁ ଅଛି ବହୁତ ହେଲାନି ସାର୍ ଏ ଯାଏ ପଦମପୁର ଏରିଆରୁ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ଶିକ୍ଷା ଜଳସେଚନ ଗମନାଗମନର ଯେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଆମକୁ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ପବ୍ଲିକର ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ନା ହାତେଇ ନେବ ହାତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆମେ ନେବୁ ଜନତାଙ୍କ ଭୋଟ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପଦ୍ମପୁର ଅପରାହ୍ନ 3:30 News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଲତ ଦେଇଛି ସଂଘ 3 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ପୁଣି ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ 3 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗତ ରବିବାରରୁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 3ଟି ବୈଠକ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ମହଲତ ମାଗିଥିଲେ ସରକାର ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସରକାରଙ୍କୁ ମହଲତ ଦେବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଆଇନଜୀବୀ ମାନିଲେନି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଓକିଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଓକିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ବ୍ୟାପକ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାସ୍ତାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ପାରିଲେନି ପୋଲିସ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିଲେନି ବିଚାରପତି ଓକିଲଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ କହିଛି ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କଲେ ବି ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁନାହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି
मुख्यमंत्री कहते फिकी सहयोग में राज्य में अधिक पुंजी निवेश हो। पूर्व भारत में व्यवसाय वाणिज्यर पेंठस्थली पलटि ओडिशा। शिल्पायन पर ओडिशा एक प्रकृष्ट स्थान। फिकी ए दिगरे अधिक सहयोग करू बोली आशा करछन्ती नवीन। कनक्लेव रे प्राय 600 स्टॉल बुली देखिछन्ती नवीन। समारोह में शिल्पमंत्री प्रताप देव जोगदे 2036 सुधा विकसित ओडिशार लक्ष्य धार्य करा जायछि। कृषि और दक्षता विकास पर एवं शिल्प क्षेत्र को सरकार गुरुत्व देउथुबा शिल्पमंत्री कहछन्ती। नुआपड़ा जिला खड़ियाल रोड स्थित नियंत्रित बजार कमिटी प्रांगण में चलित खरीफ वर्ष पर धान मंडी आरंभ होइछि। नुआपड़ा जिलापाल पूजा पाठ करी धान मंडीर शुभारंभ करछन्ती। चलित वर्ष नुआपड़ा जिले में 72 गोटी पीसीसी रही। पैक्स जरिया 57टी और एसएचजी को 15टी मंडी दायित्व दि जाइछि। चलित वर्ष 11,607 चाषी पंजीकृत होइछन्ती। नुआपड़ा जिला को प्रथम पर्यायर 14,76,320 क्विंटाल धान किणवा लक्ष्य धार्य करा जाइछि। हाईकोर्ट हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट मामला आ मासे बढ़िला अवधि। ओडिशा रे आउ लक्षे कोटी पुंजी खटाइब जेएसडब्ल्यू। मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे बड़ घोषणा कले जेएसडब्ल्यू अध्यक्ष सज्जन जिंदल। सेपटे जिंदल स्टेनलेस स्टील पार्क लिमिटेड उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। द्वितीय दिन में बहु एमओयू स्वाक्षरित। विपुल पुंजी निवेश पाई प्रतिश्रुति। गुजरात विधानसभा निर्वाचन प्रथम पर्यायर 89टी आसन पर भोटिंग जारी। 788 प्रार्थी भाग्य फैसला करुछंती। 2 कोटी अधिक मतदाता। दिन 11टा सुधा 19% मतदान। बीजेपी कांग्रेस आप मध्य त्रिमुखी लड़ई। कड़ा सुरक्षा व्यवस्था। पद्मपुर में चली घमासान प्रचार। लगातार तृतीय दिन में बीजेपी पाई धर्मेंद्र माराथन प्रचार। वर्षा राणी घर को घर बुली भोट मागुछंती बीजेडी हेवीवेट। कांग्रेस प्रार्थी सत्यभूषण साहू भी चलाई माराथन कैंपेन। ब्लैकमेलर लेडी अर्चना नाग मामला रे ईडी खोलताड़ जारी। हाजर हेले व्यवसायी शिव प्रसाद दास। अर्थनैतिक कारबार नहीं पचराउचरा। अर्चना स्वामी जगबंधु जामिन खारज। सेपटे जामिन पाई जिला दौरा जज को कोर्ट रे आवेदन कले अर्चना। यूक्रेन विरोध में पुणी युद्ध को जोरदार करिबा रूसिया। प्रतिरक्षा मंत्री को युद्ध में नेक्स्ट जेनेरेशन वेपन व्यवहार पर पुतिन का निर्देश। अमोघ अस्त्र व्यवहार पर पुतिन का निर्देश बढ़ाइला चिंता। गुजरात विधानसभा 182 आसन मध्य 89टी प्रथम पर्यायर मतदान जारी रही। 25,430 बूथ करा जायछि। दिन 11टा सुधा 19% मतदान रेकर्ड करा जायछि। कच्छ सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात 19 जिले में 89टी आसन चली भोटिंग। सकाल 8टारू भोट ग्रहण आरंभ होता बेले यह संध्या 5टा जाए चलिब। 2,49,76,670 जन भोटर 788 जन प्रार्थी भाग्य निर्धारण करेंगे। पुरुषों संख्या 1,24,33,362 एवं महिला संख्या 1,15,42,811। निर्वाचन को स्वच्छ एवं निरपेक्ष करने 19 जिलार 13,065 बूथ रे लाइव वेबकास्टिंग व्यवस्था करा जायछि। उभय बीजेपी और कांग्रेस प्रथम पर्यायर समस्त 89टी आसन में प्रार्थी देइछन्ति। अरविंद केजरीवाल आप 88 आसन में निर्वाचन लड़ुची। बीजेपी कांग्रेस एवं आप व्यतीत बीएसपी सपा सीपीएम एवं बीटीपी भली अन्य 36टी राजनैतिक दल मध्य प्रथम पर्याय निर्वाचन में प्रार्थी देइछन्ति। प्रथम पर्यायर 339 जन स्वाधीन प्रार्थी मध्य अछन्ति एवं 2017 विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी 89टी आसन 48टी रे कांग्रेस एवं 40टी आसन रे बाजीमात करिथिला। गोटिए आसन स्वाधीन प्रार्थी जीतिथिले। बैलेट पेपर व्यवस्था मध्य करिसन्ति निर्वाचन कमिशन। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथ पई करा जायछि। वोटरंक पई पिंक बूथ रो व्यवस्था करा जायछि।
नहीं, अच्छा लग रहा है। आज सबसे पहले दिया हर बार लास्ट होती है। Celebrating the voting day. We are celebrating the voting day for the development of the country. So what message you want to give the society? Yeah, everybody should voting as early as possible for the development of the India. मैं लोगों को अपील करता हूं कि अवश्य मतदान कीजिए। लोकतंत्र में मतदान बहुत बड़ा दान होता है और इस पर्व को आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी मतदान करना आवश्यक है। अवश्य मतदान कीजिए, भारे मतदान कीजिए और मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, आज हमारा जो लोकशाही का एक बड़ा पर्व है, इसीलिए हमें बहुत उत्साह है कि भाई हमारा जो मत का जो अधिकार है वो उपयोग करके एक अच्छे उम्मीदवार को चुन के लाए। इसीलिए हम जल्दी आए कि हमारा वोट कहीं बिगड़ न जाए। That is very important for everybody because we select our government, so we should plan it properly and select our proper that candidate. It's very important, and everybody should give vote on vote. मेक इन ओडिशा कनक्लेव आज होची द्वितीय दिन मिली विपुल पुंजी निवेश प्रतिश्रुति। जेएसडब्ल्यू अध्यक्ष सज्जन जिंदल बड़ घोषणा। ओडिशा रे 1 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश करिबो जेएसडब्ल्यू स्टील। या पूर्व 2018 मेक इन